And special welcome to our today's speaker on refresher course on GST, Preeti Nagi ji. Very warm welcome to you, Preeti ji. Yeah. So definitely, as we are doing this 2 days workshop, and this is the last day, and we are having a wonderful speaker with us. So to start this session, would like to invite our current chairman, C.S. Sarash Jain ji, to come and say a few words. Thank you, Pankaj bhai. A very good morning to all of you. सोनीपत ब्रांच के सभी मेंबर्स का स्वागत है। आज ही हमारा सौभाग्य है सोनीपत ब्रांच का कि आज हम सेकंड डे रिफ्रेशन कोर्स ऑन जीएसटी को होस्ट कर रहे हैं। मैं जीएसटी कमेटी के ऑनरेबल चेयरमैन सी राजेंद्र कुमार पी इन एब्सेंशिया एंड ऑनरेबल वाइस चेयरमैन सी सुशील कुमार गोयल जी इन एब्सेंशिया एंड प्रोग्राम डायरेक्टर ऑनरेबल सी चरणजोत सिंह नंदा जी इन एब्सेंशिया का धन्यवाद करना चाहूंगा। उन्होंने हमारी ब्रांच को यह मौका दिया। और हमारे आज के गेस्ट स्पीकर सीए प्रीति नेगी जी का भी बहुत बहुत स्वागत है सोनीपत में। आई थिंक आज ये उनका फर्स्ट वेबिनार है सोनीपत में एंड ही हैज अ ट्रेमेंडस नॉलेज इन हिज फील्ड। और आज का हमारा टॉपिक भी रिफंड से रिलेटेड है, तो मैम से आज हम जो सीखेंगे और जो पढ़ेंगे वो हमें प्रैक्टिकल फील्ड में भी जरूर लेके आएंगे उसको। एंड मैम वेरी वार्म वेलकम टू इन सोनीपत ब्रांच। थैंक यू। Thank you. Let's start now. Thank you, Sarash bhai. Thank you so much. So, as we know, our today's speaker directly from Amritsar, would like to introduce her. And so Preeti Nagi ji is having wonderful knowledge around the subject matter. She's a commerce graduate from BBK DAV College Amritsar. Being a member of ICAI, she is holding certification of concurrent audit from Internal Audit Standard Board and certified GST practitioner of ICAI. She is a practicing chartered accountant and running sole proprietorship of Preeti Nagi and Associates. She is co-opted member of Internal Audit Committee of NIRC of ICAI for 2018 and 19. She has been appointed as resource person of Investment Awareness Program of ICAI 2019-20. She is regularly conducting many workshops, webinars on GST and other recent topics as guest speaker for professional institutes like IIM, LPU, Punjab University, ICAI, ICSI, and CMA Institute. She is a state president of Women's Cell of ICM SME organization. She has been appointed as MCS and Orientation Program faculty of ICAI, conducting regular sessions in Amritsar, Jalandhar, Ludhiana, Chandigarh, Patiala, and Shimla branches of NIRC. She is also a founder of NGO. In her young age, so far, she has got national award as Best CA Mentor by Indian Education Award for year 2019. She has been invited as many institutes as personality development trainer, soft skills trainer, and corporate trainer. She's the only chartered accountant got special invite from IIM as their session guest. Ma'am, welcome to you, and you can start your session. Thank you so much, sir. Thank you so much for introducing me with your kind words. Yes, good morning, everyone. And first of all, good morning to Chairperson of Sonipat Branch, Sarash Jain ji, Program Director, Charanjot Nanda sir ji, in absentia, Chairman of GST and IDC Committee, Rajendra Kumar ji, Vice Chairman of GST and IDC Committee, C. Sushil Kumar Goyal ji, and Vice Chairman of Sonipat Branch, Rajesh Arora ji, Treasurer and Secretary of your Sonipat branches, Pankaj Goyal ji. And to all the professionals who have joined us with today's webinar, very good morning to everyone. In refresher course, today is the second day. My colleague Navjot Singh ji started the very first day of the refresher course with a very important topic, that is inspection, search and seizure. So today we're going to learn about the new topic, that is the refunds provisions under the GST. But before proceeding, it's been a month of GST, like 1st of July 2017 we have introduced GST, and July month again, so it's been 4 years that GST come into the tax regime. So I must say that it has been a roller coaster ride for all of us to get practicing in GST, because lots of amendments, lots of provisions, lots of circulars, and overflow with the amendments. So we cannot say that GST being a stable one, but yes, it's already also an opportunity for the young professionals. Whenever a change comes, it's an opportunity for us to cope up with that, manage that, claim that, and then
come up with the new provisions and the techniques. So grabbing the more opportunities, Sonipat branch and GST committee has organized this refresher course, and it's indeed a great opportunity for the young professionals to work on this area, because I've seen many professionals who are only working in GST tax refunds only refunds. They're dealing not only with the compliances, other areas, they're just dealing with the refunds. And it's indeed a great opportunity to learn about it and then start practicing in this area. And my today's focus on the GST refunds is I concentrate more on a practical aspect, not on the theoretical sections and just subsection and provisions. I more concentrate on practical aspects. अगर आपको इसमें प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है, हाउ टू कोप अप विद दैट, कौन से प्रोविजंस कंप्लायंस करने हैं, कौन से फॉर्म्स फिल करने हैं, कौन से आपको जो हम प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, तो आई डिस्कस दैट एज वेल विद द एग्जांपल्स, एंड अगर आपको जरूरत पड़ेगी आई ट्राई टू कनेक्ट यू विद द पोर्टल एज वेल. बट मैं मैक्सिमम मैंने क्या किया है कि जो आपके स्क्रीनशॉट्स हैं वो अपनी पीपीटी में कैप्चर करके ही आपको शो कर दिया, बिकॉज अगर मैं ऑनलाइन आपको ना कनेक्ट कराऊं, बिकॉज ऑब्वियसली दैट विल टेक टाइम to log in and get connected with it. But more of time I'll concentrate on a practical aspect. So जो भी आपकी problems होंगी, I'll take up the problems, take up the queries and try to get resolved with it. So with this more exposure of it being a practical, so I'm going to share my slide with you, PPT with you. So hope it's fine with you, and let me know when it is visible to you. Just give me a second. Because GST is the one area, it's in the favor of assessment, right? Rest all thing, everything is in the favor of the government. So government always reluctant to transfer the refunds to the assessee, and assessee is always reluctant to get the refunds from the government. So considering the both point of view, it's not very difficult task to get the refund from the government when you're complying with the tax and provisions. But it's very difficult when you have done one error in the whole your file or documentation. तो यहाँ पे जो एरर है उसका स्कोप नहीं है, बट अगर आपने एरर फ्री फाइल अपलोड कर दिया तो आपको 7 डेज में 10 डेज में आपका रिफंड आ जाता है. सो हियर यू नीड टू नो अबाउट इट, कौन से एरर्स हम करते हैं, कौन से हम कंप्लायंसेस करते हैं, बिकॉज टिल नाउ इट्स बीन 4 years, सो आई एम नॉट गोइंग टू के मैं आपको 4A में क्या है, 4B में क्या है, राइट. सो नॉट गोइंग बाय द थ्योरेटिकल प्रोविजंस, बट यस आई डिस्कस द सेम जहाँ पे हम नॉर्मली आपको कैप्चर करने के लिए स्टेप्स लिए होता है. So yes, first of all, as everybody is aware about it, what is refund, right? Everybody is aware about it. क्योंकि ये हमारा एक कोप अप एरिया है कि बिकॉज वी नीड रिफंड, दैट मीन्स हमें कुछ पैसे आने वाले हैं, राइट. टू गो इनटू द शॉपिंग ऑनलाइन, हमें रिफंड आने वाला है, हमें पैसे आने वाला है. So that craze is there for you as well and for the assessee as well. So this is a very best area for you to practice. So coming to it, refunds are what is I returned from the government, right? Returned from the government, paid by the registered taxpayer in excess. आपने गवर्नमेंट को कोई डिपॉजिट करा है विच इज इन एक्सेस ऑफ द डिपॉजिट, और ये केसेस कब ज्वाइन होते हैं, व्हेन आप कैजुअल टैक्स पेयर हो, आपने अपनी रजिस्ट्रेशन ये ऑन कैजुअल टैक्स बेसिस, एंड आपकी कैजुअल टैक्स बेसिस पे जो रजिस्ट्रेशन हुई है उसमें आपको असेसमेंट के बेस पे टैक्स जमा कराना पड़ता है. सो दिस कैन बी द केस यू हैव पेड द टैक्स टू द गवर्नमेंट एंड यू आर नॉट लायबल टू बी टैक्स्ड. तो यहाँ पे आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं, बट बहुत सारे एरियाज है. टुडे आई एम गोइंग टू फोकस ऑन रिफंड्स ऑन एक्सपोर्ट with payment of tax, without payment of tax, and then I discuss about the inverted duty structure. So basically आप refunds कब claim कर सकते हो, when you have money in a cash ledger, when you have money in a cash ledger and you're not using it. by आपको wrong payment से आपने cash ledger में amount deposit करा दी है या excess payment deposit करा दी है, same in the case like a casual taxpayer, आपने amount deposit करा दी, you can take the refund from the government. Second one is credit ledger. Credit ledger means आपकी जो account में है ऑलरेडी आपके इनपुट पड़ा हुआ है और आपको उसको गवर्नमेंट से रिफंड क्लेम करना है. बेसिकली ये जो सिनेरियो आता है यहाँ आपका इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में आता है, या आपका एक्सेस जो आपका रिफंड वहाँ पे या जो आपका इनपुट वहाँ पे ब्लॉक हो रहा है उसमें आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं. आपको एक्सेस कैश पेमेंट अगर आपने रॉन्गली पेमेंट करी है, बिकॉज इन वेरी स्टार्टिंग जब जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ था तब रॉन्गली पेमेंट्स लोगों से बहुत हुई है. आपने आईजीएसटी में पेमेंट डिपॉजिट करनी थी, आपने सीजीएसटी में डिपॉजिट कर दी है, सो दैट काइंड ऑफ है, और तब आपको रिफंड्स उसके नहीं क्लेम होते थे. बट नाउ दे हैव कम इट विद इट कि आपको एक जस्ट एक फॉर्म फाइल करना है एंड यू कैन ट्रांसफर द कैश लेजर from CGST to IGST, from IGST to CGST. So this facility is also available in the online case.
और वो आपको एक फॉर्म फाइल करने से ही आपका जो क्रेडिट है वो आपके कैश लेजर से दूसरे लेजर में ट्रांसफर कर देता है। बिफोर गोइंग टू थिंक कि आपको कौन कौन से कंप्लाइंसेस करने हैं, फर्स्टली हम ये देख लेते हैं कि आपको जो रिफंड अलाउड होता है वो कब अलाउ होता है, क्या हम रिफंड लेने के लिए एलिजिबल भी हैं, क्या हमें वो मिल भी सकता है गवर्नमेंट से। सो आई हैव टेकन दिस ऑल द प्रोविजंस, जिसमें बेसिकली हमें क्या है, जब हमारा एक्सपोर्ट हो चुका है, बिकॉज रिफंड्स बेसिकली वी आर डिस्कसिंग ओवर हियर द एक्सपायर्ड रिफंड्स ऑन एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, राइट, देन आई डिस्कस विद पेमेंट ऑफ टैक्स। तो दोनों सिनेरियो में जब हमारा जो गुड्स हैं वो ट्रांसफर हो गए हैं या सर्विस हम प्रोवाइड कर चुके हैं, तो हमें जो करेंसी डिराइव होती है दैट इज ना फॉरेन एक्सचेंज। तो जब हमें सर्विसेज के बेस पे जब हमें फॉरेन एक्सचेंज में करेंसी रिसीव हो गई है, देन वी कंसीडर दैट यस वी हैव एक्सपोर्ट द सर्विसेज। और जब हमारे एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स में जब हमारे गुड्स हमारे पोर्ट से निकल रहे हैं, दैट मीन्स लीव द इंडिया, देन वी कंसीडर दैट दैट्स एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। तो प्रोविजन में लिखा गया है रिफंड अलाउड विद इन 2 years फ्रॉम द रेलिवेंट डेट। So we are going to discuss about what is the relevant date for claiming the refund from the government. Goods exported out of India by sea, right? So goods exported out of India by the sea. Here the date on which ship, aircraft on which goods are loaded leaves India. That means जब आपका शिपिंग बिल फाइल हो गया है, जब आपका कस्टम से बिल फाइल हो गया है, उसके बाद when the ship is going to leave India, that will be your date. उसके 2 साल बाद तक आप जो अपना रिफंड क्लेम कर सकते हो। Again, next provision is goods exported out of India by land. By land means जब आपका कस्टम पोर्ट से आपका शिप चला गया है, उस डेट से, दैट मीन्स जो आपकी डेट है शिपिंग बिल पे जो आपकी डेट लिखी हुई है, जो कस्टम CHD में जो आपकी डेट लिखी हुई है, उस डेट से 2 साल बाद तक आप उसका रिफंड क्लेम कर सकते हैं। गुड्स एक्सपोर्टेड बाय पोस्ट। गुड्स एक्सपोर्टेड बाय पोस्ट मेनली होता है कि जो हेवी आइटम्स नहीं है, जिनका आपके सी के लैंड के थ्रू नहीं जा रहा, लाइक नाउ डेज व्हाट इज हैपनिंग इज कि जो आपके गोल्ड है, राइट, गोल्ड के केसेस में दे हैव अ पर्टिकुलर बायर्स, दे हैव अ पर्टिकुलर ट्रांसपोर्टर्स जो आपके गोल्ड एक्सपोर्ट करते हैं। तो उस केस में वो डेट ऑफ डिस्पैच ऑफ गुड्स बाय पोस्ट ऑफिस टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। तो जब आपके वो शिप में जब आपके इनवॉइस पे जिस डेट की उनकी स्टैंप लगी हुई है, उस डेट से 2 साल आगे तक आप उसका रिफंड क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज वेयर सप्लाई ऑफ सर्विसेज कंप्लीटेड prior to receipt of the payment. Supply of services completed prior to receipt of payment. At that point of time, जब तक हमें मनी रिसीव नहीं होती है in a foreign exchange, because this is the kind of export, तो हमें एक्सपोर्ट में जब तक हमें मनी करेंसी एक्सपोर्ट या फॉरेन करेंसी में रिसीव नहीं होती है, तब तक हम उसको एक्सपोर्ट नहीं मानते। तो द डेट फ्रॉम 2 years फ्रॉम द डेट जब हमें फॉरेन करेंसी फॉरेन कन्वर्टेबल एक्सचेंज में रिसीव हो गई है, 2 years फ्रॉम दैट। Next is export of services where payment is received prior to the issue of notice. Okay, when the invoice is issued and the payment is received, normally हम लेते हैं later or earlier, we relate it earlier. So जब invoice हमें issue हो गया है या payment हमें receive हो गया है, we used to take the date of invoice and 2 years from the date of invoice for the payment for the claiming the refund. Next is refund of unutilized credit. Normally this is the case of inverted duty structure, और ये हम आगे पढ़ेंगे। प्लस इनमें आपको जो dates हैं that is related to the returns you have filed, and for that I have taken the section 39. तो ये हम inverted duty structure में जरूर इसको carry on करेंगे। Options for claiming refund. So here I am going to discuss about options for claiming refund under export structure only. So option for claiming refund plus with payment of tax or without payment of tax. With payment of tax that means आपको जो टैक्स है आप पे कर रहे हो, और जो आपका टैक्स जो आपने पे किया है उसका आप रिफंड में मांग रहे हो। सेकेंड इज विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, वो आपको एग्रीगेट बेसिस पे जो आपकी टर्नओवर है उसके बेसिस पे आपको क्लेम होता है। तो इन बोथ द केसेस, फर्स्ट केस में आपको विद पेमेंट ऑफ टैक्स में आपको जो एलयूटी वो फाइल नहीं करनी पड़ती, विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स में आपको एलयूटी फाइल करना पड़ता है, आपको बॉन्ड फाइल करना पड़ता है, आपको डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करने पड़ते हैं। तो हियर द कंप्लायंसेस इज आप कितने टाइम में कितना कंप्लायंसेस आप कंप्लीट कर सकते हो। बोथ द ऑप्शंस आर रिलेवेंट, बोथ द केसेस आपको रिफंड जो क्लेम हो जाता है, but better is to take the other mode is better to take the mode of LUT. Okay.
There is a detailed thing. Export of goods on payment of tax. Export of goods on payment of tax. When you paid the tax and you are claiming to recover the tax from the government. So here it is very important thing जो आपका एक क्लू है, जो आपका एक क्लू होल है कि अगर आपकी शिपिंग बिल आपके पास नहीं है, अगर आपके पास एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट नहीं है, you cannot claim refund from the government. These are the priorities, these are the basics to claim the refund from the government. That is shipping bill and export journal manifest. We call it EGC, EGM. So उसमें आपको वो आपको क्लेम करने के लिए आपको उसमें जो डेट ऑफ इनवॉइस है, उसके जो आपको बिल है, आपका पोर्ट डेट है, everything you have to mention in GSTR1 because when you are paying the tax that is totally connected with your GSTR1 and is connected with your 3B. अगर कोई भी कंप्लायंस में अगर आपका इनवॉइस जो आपने डेट डाली है या आपका इनवॉइस नंबर डाला है, अगर इनवॉइस नंबर था R156 और वहां पे आपने जो इनवॉइस नंबर डाल दिया है इट्स ओनली 56, so it's not matching with it, so your shipping bill, your invoice date, invoice number and GSTR1 because that data will be automatically auto populated to IC gate because our import and export, right? So that data will automatically populated to import and export code और वहां से वो मैच करेंगे आपका डाटा फ्रॉम शिपिंग बिल एंड योर इनवॉइस. अगर वहां पे बिकॉज दैट इज अ कंप्यूटराइज्ड बेस, ओके, वो जो मैचिंग होती है वो मैनुअल बेस पे नहीं होती, दैट विल बी ऑन अ कंप्यूटराइज्ड बेस. अगर वहां पे आपका एक भी फ्लॉ आता है, लाइक अगर डॉट भी आपका एक्स्ट्रा आ गया वहां पे इनवॉइस में या डेट में या आपके जो पोर्ट कोड में, अगर एक डॉट भी एक्स्ट्रा है तो वो मिसमैच कर देगा. तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू नीड टू बी पर्टिकुलर अबाउट इट कि जो डाटा, जो इनवॉइस, जो आपने जो डाटा आपने शिपिंग बिल में डाला हुआ है वही जो डाटा है वो आपका इनवॉइस में आना चाहिए, वही डाटा आपको GST1 में आना चाहिए and then auto populated to ICGate and then they match with the government portal and the data auto populated in ICGate. अगर उसमें mismatch है तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा. So here it is, shipping bill filed by the exporter of the goods deemed to be an application of refund of IGST payment on goods by the exporter of the outside of India. It's deemed to be filed only when the person in charge of the conveyance carrying the goods files an export journal manifest or export report covering the number and date of the shipping bill. Same is the thing, अगर आपके पास export journal manifest नहीं है, अगर आपके पास export report नहीं है, तो then you won't be able to claim the refund from the government and that is much necessary because वहाँ पे shipping bill, invoice date दोनों का compliance होता है. Next is the applicant furnish a valid return in the form of 3B. तो दो रिटर्न्स यहाँ पे आपको फाइल करनी बहुत कंपल्सरी है टू क्लेम द रिफंड फ्रॉम द गवर्नमेंट. द फर्स्ट वन ओवर हियर इज योर GSTR1 जिसका आपको अभी मैं बता दूंगी आपको कौन से कॉलम में आपको जो शो करनी है अमाउंट. सेकेंड वन इज योर 3B, दैट मीन्स आपकी जो रिटर्न है जिसमें आपको टैक्स है. अगर आपने जो वहाँ पे रिटर्न में शो किया है 3B में शो किया है और जो GSTR1 में टैक्स शो किया है, अगर 3B में टैक्स कम है एज कम्पेयर टू GSTR1 then you won't be able to claim the refund. Then you won't be able to claim the refund from the government because the fact is आपने जो tax pay किया है government को that is mismatch from the GSTR1. So at that point of time आपको भी particular होना पड़ेगा या आपको जो return है वो next quarter में या next month में revise करनी पड़ेगी to claim the refund from the government. Details of the export invoices in form GST1 is transmitted electronically. Same thing, transmitted electronically to the common portal of ICGate and portal will confirm if the goods have been exported. जो आपने डिटेल्स GSTR1 में एक्सपोर्ट के डाली हुई है रिलेटेड टू शिपिंग बिल, वही और डेट्स जो हैं वो आपकी ICGate पे ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाती है और कस्टम हाउस में जो शिपिंग बिल आपका जो डिपॉजिट हुआ है वही डिटेल्स IC पोर्टल में अपडेट हो जाती है. दैट मीन्स गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली मैचिंग द डाटा जो आप पब्लिश कर रहे हो, जो आप अपलोड कर रहे हो और जो गवर्नमेंट की तरफ से डाटा है, अगर वो मैच करता है then you will definitely gonna get the refund from the government. अगर वो डाटा नहीं मैच करता है then it will very difficult. एक प्रॉब्लम जो यहाँ पे आ रही है लोगों को नॉर्मली, वो मैं आपको अभी कन्वे कर देती हूँ बिकॉज पीपल आर लाइक के उनको पता नहीं चलता या दे आर नॉट अवेयर अबाउट इट हम कौन सा डाटा डालें. एक्सपोर्ट करने के टाइम गवर्नमेंट का एक एक्सचेंज रेट होता है और वो गवर्नमेंट का एक जो एक्सचेंज रेट होता है वो 15 डेज के बाद चेंज हो जाता है.
उस केस सिनेरियो में क्या होता है, जो हमारा इनवॉइस पे एक्सचेंज रेट है, बिकॉज इट्स एक्सपोर्ट, तो हमारा एक्सचेंज रेट जो फॉरेन के अकॉर्डिंग चलेगा। अगर हमारा फॉरेन में एक्सचेंज रेट जो अपन इनवॉइसिंग करी है दैट वाज 76, और जब हमने एक्सपोर्ट किया है वो एक्सचेंज होके जो रेट हो गया 77, इट्स जस्ट 1 रुपी डिफरेंस। बट जो शिपिंग बिल आपका तैयार होगा दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ शिपिंग, जो और उस टर्म के एक्सचेंज रेट होगा। दैट मीन्स जो आपका शिपिंग बिल रेडी होगा वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ ₹77, जो उस टाइम पे एक्सचेंज रेट है शिपिंग इनवॉइस के, जो 15 डेज का आपका गैप होता है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू टाइम पे क्या होगा, जो आपकी इनवॉइस में अमाउंट होगी दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ 1000 into 76 into 18%, और जो आपकी शिपिंग बिल पे अमाउंट होगी दैट विल बी 1000 into 77 into 18%। दैट मीन्स वो टैक्स के ऊपर भी जो डिफरेंस होगा वो भी आपका, अगर रिटर्न्स में अगर आपका डिफरेंस आया, वी वुड बी एबल टू क्लेम द रिफंड। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई ऑलवेज एडवाइज कि आप जो जीएसटीआर 1 में जो डिटेल्स डालते हो, जीएसटीआर 1 में जो आप अपलोड करते हो, वो बेसिकली आप शिपिंग जो बिल है आपका उसके रिलेटेड करें। बिकॉज अगर इनवॉइस के रिलेटेड करेंगे और जो गवर्नमेंट के पास डाटा जा रहा है दैट इज ऑन द रिलेटेड ऑफ शिपिंग बिल, और जो आपके पास डाटा अवेलेबल है इफ यू गोना अपलोड फ्रॉम द बेसिस ऑफ इनवॉइस डिटेल्स, तो उसका जो मिसमैच होगा उसके बेसिस पे आप जो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, आपको रिफंड नहीं मिल पाएगा। तो जितनी बार मर्जी आप रिवाइज कर ले, इनवॉइस नंबर को रिवाइज कर ले, डेट को रिवाइज कर ले, हमने डाटा तो करेक्ट किया था, बट अनलेस एंड अंटिल इट्स नॉट मैचिंग विद द डाटा ऑफ द गवर्नमेंट, यू आर नॉट गोइंग टू गेट द रिफंड फ्रॉम द गवर्नमेंट। एक और सिनेरियो भी हो सकता है कि आपका जो रेट था वो 77 था, और जो गवर्नमेंट का रेट था, जो गवर्नमेंट की शिपिंग बिल का उस दिन का रेट था, दैट गोना बी लोअर वन, 75 74, वो लोअर भी हो सकता है। इवन इन दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपको टैक्स जो है वो कम पे करना पड़ा एट द टाइम ऑफ डिस्पैच, राइट। बट आपको जो इनवॉइस में क्लेम करना है वो आपको शिपिंग बिल का ही क्लेम करना है। so that means चाहे exchange rate on the date of dispatch, चाहे exchange on the date when the port is going to leave India, चाहे वो कम हो चाहे वो ज्यादा हो, प्रेफरेबली कि आपको जो डाटा अपलोड करना है, जो आपको रिफंड क्लेम करना है, दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ शिपिंग बिल। यहाँ पे एक और क्वेरी आती है, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू, जो आपकी क्वेरीज है मैं एंड ऑफ द सेशन ले लूंगी, बट आई ट्राई टू इट कि जो भी क्वेरीज है मैं साथ साथ उसको मैच करती जाऊँ। यहाँ पे एक क्वेरी आती है कि अगर हम इनवॉइस वैल्यू अगर नहीं देते, हम शिपिंग बिल वैल्यू देते हैं, तो डाटा क्या होगा, हमारे इनवॉइस से शिपिंग बिल से डाटा मिसमैच हो जाएगा। तो वहां पे हम अकाउंटिंग में कवर अप कैसे करेंगे, या जो अकाउंटिंग हम कर रहे हैं उसमें भी मिसमैच आ जाएगा। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो आपको एंट्री करनी है उसमें जो बैलेंस आ रहा है, जो डिफरेंस आ रहा है, उसको आपको एक्सचेंज रेट को अकाउंट को जाना पड़ेगा। इट्स अप इट्स डाउन, आपको एक्सचेंज रेट को बैलेंस डेबिट करना पड़ेगा, तो देन यू विल एबल टू क्लेम, और आपकी उसमें अकाउंटिंग भी मैच हो जाएगी। वाई सो, बिकॉज जो डिफरेंस था वो आपने अकाउंटिंग एंटर में एक्सचेंज रेट में डाल दिया है, और जो आपका जो एक्सचेंज रेट शिपिंग बिल के हिसाब से था उसमें आपने जो रिफंड क्लेम किया है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ शिपिंग बिल। तो जो आपकी बेसिकली इस केस में द ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स में जो बेसिकली लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, बिकॉज आपको जीएसटी 1 फाइल कर दी, 3 भी फाइल कर दी, देन यू लाइक कि हम अब क्लेम कर रहे हैं, अब हम वेट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट अपने आप रिफंड दे देगी, बट आपको ये नहीं पता चलता कि हमारी गलती कहाँ थी। तो हियर आई डिस्कस अबाउट द थिंग कि आप अपनी गलती भी कैसे कैच कर सकते हैं, कहाँ से पोर्टल से चेक करके अपनी गलती कैच कर सकते हैं, then you will be able to rectify the same from the government portal, and you can make the amendment in the very next month's return of the GST one. Upon confirmation, amount equal to IGST in respect of shipping bill, bill of entry to be electronically credited to the bank account of the applicant. अगर ये डाटा मैच कर जाता है तो आपके बैंक अकाउंट में आपके जो बिल ऑफ एंट्री उसके अकॉर्डिंग आपका ऑटोमेटिकली आपको रिफंड आ जाता है, उसमें आपको और प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। व्हेन यू फाइल्ड योर रिटर्न्स वेरी मच करेक्टली, व्हेन यू फाइल्ड द रिटर्न्स अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट सेटिस्फैक्शन, व्हेन यू फाइल्ड द रिटर्न्स अकॉर्डिंग टू द शिपिंग बिल, तब आपको प्रैक्टिकली आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, मोर डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे नहीं है। कमिंग टू द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स, जो मैंने बहुत सारे आपको पहले डिस्कस कर दिए हैं, बट हियर आई एम गोइंग टू मेक अ लिटिल बिट इलैबोरेटिव वे कि आपको वहाँ पे कैसे करेक्ट करना है। So practical aspects of export of goods on payment of tax. Firstly, tax amount, जो आपकी tax amount 3B में है वही tax amount आपकी GSTR 1 में है, उससे above हो सकती है 3B में, पर उससे कम नहीं होनी चाहिए। अगर GSTR, because GSTR 1 में जो आप export of goods में आपके कर रहे हो, आप refund claim कर रहे हो, तो जो आपकी रिटर्न 3B में जाते हैं वो आपके जाते हैं कंपाइल्ड टैक्स,
तो कंपाइल टैक्स होता है, उसमें नहीं पता चलता कि आपने कौन सा क्लेम किया है। तो जो आपका टैक्स है वो आपका जो 3B में है दैट विल बी मोर देन द GSTR1 और इक्वल टू द GSTR1. If it's less than GSTR1, then you won't be able to claim the refund from the government. सेकेंड पॉइंट जो हम गलती करते हैं दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ GSTR1 एंड शिपिंग बिल. आपको जो अपनी एंट्रीज डालनी है, तो आपको डालना है शिपिंग बिल की डेट, इनवॉइस नंबर, डेट ऑफ इनवॉइस बिकॉज दैट कैन बी डिफरेंट वन. अगर आपने इनवॉइस जो है वो काटा है टुडे लाइक 11th of July, और अगर आप शिपिंग कर रहे हैं ऑन 21st of July, तो दैट विल बी डिफरेंस इन द डेट. तो आपको दोनों डेट्स मेंशन वहां पे करनी है बिकॉज मोस्ट प्रोबेबली केसेस में होता है वो डेट सेम नहीं होती है. तो नेक्स्ट इज पोर्ट ऑफ कोड. ये 5 चीजें आपको वहां पे GSTR1 में मेंशन करनी जरूरी है. तो द डेट शिपिंग बिल मींस शिपिंग बिल का नंबर ही मेंशन होगा जो वहां पे लिखा है एज एग्जैक्टली. नो चेंज एट ऑल, नो डॉट एक्स्ट्रा, नो कोमा एक्स्ट्रा, नथिंग एट ऑल. आप कई बार करते हैं, आप जो इनवॉइस नंबर लगाते हैं, आपकी जो सीरीज चल रही होती है दैट इज R156 और आप वहां पे अपलोड कर देते हैं ओनली 156. In that case also you won't be able to claim the refund because वो क्या है, वो ऑटोमेटिकली मैच हो रहा है. जो गवर्नमेंट की साइड है वो ऑटोमेटिकली मैच करे, दैट इज ऑन द कंप्यूटराइज्ड बेसिस. तो यू वोंट बी एबल टू गेट द रिफंड फ्रॉम द गवर्नमेंट जस्ट ऑन द बेसिस कि हम वहाँ पे आर अपनी सीरीज लगा रहे हैं और हमारा इनवॉइस जो है हमारा जो हमारा शिपिंग बिल के पास गया था इनवॉइस वहाँ पे आर नहीं है. सो दैट मीन्स देयर इज मिसमैच, तो यू वोंट बी गेट द रिफंड फ्रॉम द गवर्नमेंट. अगर वहां पे आपका जो डाटा है वो करेक्टली मैच हो जाता है फ्रॉम द शिपिंग पोर्टल, राइट, फ्रॉम द IC गेट, तो वहां पे कोड आपको शो हो जाएगा SB000. SB000 मतलब नो एरर्स, एवरीथिंग इज क्लियर, सो यू विल बी एबल टू गेट द रिफंड फ्रॉम द गवर्नमेंट. बट इफ देयर इज एरर, वो एरर की आपकी जो कोड्स हैं वो भी मैं अभी आपको क्लियर कर देती हूँ. जो आपके एरर्स हैं, इफ देयर इज इनकरेक्ट वे, दैट मीन्स कोई भी आपका एरर है, यू वोंट बी एबल टू गेट द रिफंड फ्रॉम द गवर्नमेंट और उसको आपको नेक्स्ट रिटर्न में करेक्ट करना पड़ेगा. जब आप करेक्ट कर लेंगे अगेन वो मैचिंग करेगा, जब मैचिंग हो जाएगी यू विल एबल टू गेट द रिफंड फ्रॉम द गवर्नमेंट. ओके मैम, आई हैव टेकन द स्क्रीनशॉट फ्रॉम द टेबल कि आपको GSTR1 में कैसे कहाँ पे शो करना है. देन आई टेकन द स्क्रीनशॉट ऑफ 3B एज वेल. तो दोनों को आप मैं बता देती हूँ कहाँ से आपको क्या एंट्री करनी है, बिकॉज वन मिस्टेक एंड यू नॉट गोना गेट द रिफंड. तो रिफंड आपका चाहे 5,000 का है, चाहे 5 लाख का है, चाहे 50,000 का है, you won't be able to get the refund because irrespective of the fact कि आपकी अमाउंट कितनी है, आपको जो कंपाइल करने हैं लॉज वो सेम ही करने हैं. तो हियर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बताना है, ये आपको GSTR1 में एक्सपोर्ट के कॉल में दिखाना है फर्स्ट ऑफ ऑल. तो आपको जो इनवॉइस B2B अपलोड करते हैं उसमें ये डिटेल्स आपको नहीं मिलेंगी. विल गेट द डिटेल्स फ्रॉम द एक्सपोर्ट कॉलम. ओके, सो फर्स्टली इनवॉइस नंबर एज पर द इनवॉइस डेट अगेन एज पर द इनवॉइस. जो आपने अगर इनवॉइस अपना कैंसिल किया हुआ है, आपने नया इनवॉइस शुरू किया है, तो आप नए न्यू इनवॉइस के बेस पे ही आप अपनी डेट बताओगे. So invoice date, port code, again a compulsory thing. You will get the port code from the shipping bill. Shipping bill, bill of entry. Bill of entry means import के अगर आपने import किया है, and shipping bill अगर आपने export किया है. So both the dates, shipping bill number plus आपका जो date है उसका आपको बताना पड़ेगा. Invoice value. वेरी मच इम्पोर्टेंट. इनवॉइस वैल्यू यहाँ पे नॉर्मली क्या करते हैं, हम इनवॉइस वैल्यू देते हैं जो हमारे इनवॉइस में मेंशन करी हुई है. तो यहीं पे मैंने आपको करेक्ट करने की कोशिश की है. जो यहाँ पे आपको इनवॉइस वैल्यू देनी है वो आपको शिपिंग बिल की इनवॉइस वैल्यू देनी है, आपको अपने इनवॉइस की इनवॉइस वैल्यू नहीं देनी है, बिकॉज दिस डाटा विल गेट ऑटोमेटिकली ऑटो पॉपुलेटेड टू IC गेट और वहाँ पे IC गेट में जो वैल्यू दी हुई है दैट विल बी ऑफ शिपिंग बिल. तो वो मिसमैच हो जाएगा, यू वोंट बी एबल टू गेट द रिफंड फ्रॉम द गवर्नमेंट. नेक्स्ट इज पेमेंट. With payment of tax or without payment of tax. So this is the case of with payment of tax. So यहाँ पे जो आप data upload करोगे that will be with payment of tax and rest is your invoice and tax details. Again in 3B. So in 3B mostly question जो आता है क्या हम इसको exempted में लगाएं, क्या हम nil-rated में लगाएं, तो हम इसको डाटा को कहाँ आप मेंशन करें. तो नॉर्मली आपको ये डाटा जो मेंशन करना है ना आपको 3A में मेंशन करना है, ना C में मेंशन करना है, ना D में मेंशन करना है. जो आपको डाटा करेक्टली मेंशन करना है दैट विल बी ऑन 3B कॉलम, दैट इज आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई ऑन 0 रेटेड. तो यहाँ पे आप जो टैक्सेबल की अपनी अमाउंट है ऑलवेज IGST होगी बिकॉज एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, तो वहाँ पे CGST आपका नहीं आएगा. तो ऑलवेज एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स. तो यहाँ पे आप अपनी एक्सपोर्ट की अमाउंट शिपिंग बिल के हिसाब से प्लस
आपके जो टैक्स है वो यहाँ पे मेंशन करेंगे. So if these two details, this of GSTR 1 and this is of 3B, अगर आपने correctly mention करी है, so there will be no flaw and you will be able to get the refund from the government, and it will take only 7 to 10 days if you have mentioned everything is correctly. Now आपको ये बता देते हैं, this is errors. This is error coding. अगर आपको ये चेक करने हैं शिपिंग बिल में, first you have to go to IC Gate. You have to click the shipping bill inquiry. अगर आपको नहीं IC Gate की वेबसाइट भी नहीं मिल रही, what you have to do is just go to Google shipping bill inquiry. आपको IC Gate की वेबसाइट मिल जाएगी, वहाँ पे जस्ट आपको अपना शिपिंग बिल डालना है, आपको अपनी डेट डालनी है, राइट. So you will be able to get कि आपकी वहाँ पे जो आपकी अपलोड हुई है डाटा वहाँ पे क्या शो हो रहा है और आपके यहाँ क्या शो हो रहा है. So here you will get the codes. अगर इसमें से आपको कोई कोड मिलता है, that means आपको वो अपना करेक्ट करना पड़ेगा. So you won't be able to know कि हाँ मेरा रिफंड क्यों नहीं आया, मेरा रिफंड क्यों नहीं आया. So to get it to check from the IC Gate, आपको ये कोडिंग सिर्फ वहाँ पे विजिबल होगी. तो कोडिंग के मतलब क्या है वो मैंने आपको यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया है कि आपको किस कोड को जाके करेक्ट करना है. If the code is 000, that means everything is fine. सब ठीक है, आपको रिफंड मिल जाएगा. यू जस्ट गेटिंग ओवर कॉन्शियस कि हाँ मेरा रिफंड अब तक क्यों नहीं आया, राइट. सो इफ द कोड इज 000, दैट मींस एवरीथिंग इज करेक्ट, सो सक्सेसफुली वैलिडेटेड, आपको उसमें कोई फ्लॉ नहीं है. विल गेट द रिफंड फ्रॉम द गवर्नमेंट क्लीनली. द नेक्स्ट कोड इज 001, इनवैलिड शिपिंग बिल डिटेल्स. तो दैट मीन्स आपने जो शिपिंग बिल की डिटेल्स वहाँ पे अपलोड करी है उसमें या तो कोई एरर है या आपने गलत करी है या आपका कोई मिसमैच है. So that means you have to get the check details from the shipping bill only. There is no flaw on the invoice, there is no flaw on the code, but it's only on the shipping bill details. So यहाँ पे आपको सिर्फ वही चेक करना है, get it corrected and you will get the refund from the government. Another code is 0002. So 002 में EGM not filed. मैंने आपको पहले बोला था अगर आपको शिपिंग बिल आपके पास नहीं है, आपने EGM फाइल नहीं करी है, दैट मीन एक्सपोर्ट जर्नल मैनिफेस्ट, वो चीजें आपने नहीं फाइल करी हैं तो गवर्नमेंट आपको रिफंड नहीं देने वाली है. EGM फाइल करना एंड शिपिंग बिल इज मैंडेटरी वन. तो मोस्ट ऑफ द केसेस में लोग कहते हैं कि शिपिंग बिल हमारे पास है तो दैट मीन्स इट्स सफिशिएंट एनफ, विल गेट द रिफंड फ्रॉम द गवर्नमेंट. बट अगर वाइल फाइलिंग और वाइल लीविंग द पोर्ट आपका EGM फाइल वहाँ पे सबमिशन नहीं हुआ, दैट मीन्स जो कस्टम हाउस है वहाँ में आपका EGM फाइल आपकी सबमिशन नहीं हुई, even then you are not going to get the refund from the government, because वहाँ पे जो confirmation है from the custom house नहीं मिली है तो आपको refund नहीं मिलेगा. तो that error you also have to get. तो ये जो EGM का आपका जो correction है वो आपको custom house से होगा, वो आप online नहीं कर सकते. The next one is 003, SB 003, GST and mismatch. Obviously आपका GST and mismatch है तो वो पार्टी आपको ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं. दैट मीन्स आपका इनवॉइस में, आपका यहाँ आपका शिपिंग बिल में कहीं पे भी आपका जो GST नंबर है वो गलत एंटर हुआ है. तो व्हेन इट्स मिसमैच, दैट मीन्स पर्सन इज नॉट ट्रेसेबल, सो यू नॉट गोइंग टू गेट द रिफंड फ्रॉम द गवर्नमेंट. रिकॉर्ड ऑलरेडी रिसीव्ड एंड वैलिडेटेड. 004, रिकॉर्ड ऑलरेडी रिसीव्ड एंड वैलिडेटेड. दैट मीन्स आपने वो जो इनवॉइस है एक बार पहले ही अपलोड कर दिया हुआ है, राइट. दैट मीन्स उस इनवॉइस के रिलेटेड आप एक बार रिफंड क्लेम कर चुके हैं और उस इनवॉइस को आपने दूसरी बार अपलोड किया है टू गेट द रिफंड फ्रॉम द गवर्नमेंट. सो यू आर नॉट गोइंग टू गेट द रिफंड ऑन द बेसिस ऑफ कि आपने एक इनवॉइस पे 2 बार रिफंड ले सकते हो, नॉट पॉसिबल एट ऑल. सो वहाँ पे वो एरर शो कर देगा आपको दैट रिकॉर्ड ऑलरेडी रिसीव्ड एंड वैलिडेटेड. दैट मीन्स आपका जो पिछला वाला इनवॉइस था दैट इज free of errors, no error at all. So you need not to upload that invoice again. So one invoice, one refund only. So you cannot get the refund on same invoice again. So next is invalid invoice number. Right? आपका invoice number जो वहाँ पे valid हुआ है वो गलत है. Need to get corrected on a very next return. And is SBI 006, gateway EGM is not available. Again error is, अगर इसमें से आपका कोई भी एरर आ गया है वो आपको चेक करने के लिए IC Gate की वेबसाइट पे ही जाना पड़ेगा, आप कहीं और से उसको चेक नहीं कर सकते. So once you have updated your returns of GSTR 1, once you have updated the returns of 3B, then it's mandatory कि आप वहाँ पे पोर्टल पे जाके चेक करें, पोर्टल पे जाके वहाँ पे चेक करें क्या मेरी जो रिटर्न फाइल हुई है, क्या जो मेरे जो अपने रिटर्न GSTR 1 और 3B फाइल करी है क्या वो एरर फ्री हैं. If it's error free, then definitely gonna get the refund. If it's not error free, check the error, क्या error आ रहा है, then correct it and then get the refund from the government.
So this was all on the basis of the export of goods with the payment of tax. यहाँ पे अगर आपको कोई query है with payment of tax में, you can drop it down, okay, we'll resolve it. Otherwise, I'm going to move on a very next topic, that is export without payment of taxes. तो यहाँ पे जो विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्सेस है, यहाँ पे कंप्लायंसेस थोड़े से ज्यादा हैं बिकॉज इट्स विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्सेस, आप गवर्नमेंट को कुछ पे नहीं कर रहे हो, देन यू वांट टू क्लेम द रिफंड फ्रॉम द गवर्नमेंट. यहाँ पे कंप्लायंसेस थोड़े ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू द विद पेमेंट ऑफ टैक्स. With payment of tax, you have paid the tax and that you get claimed from the government. And without the payment of tax, you have to submit the documentation. You have to submit the, because there's many guidelines as well. So, I'm going to proceed with the very next topic because I guess there is no queries as of now. Okay. The next one over here is export without payment of tax. आपको यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से दो ऑप्शन दी जाते हैं. अगर आपने कोई गुड्स एक्सपोर्ट करने हैं, या तो आप उसको LUT फाइल कर दो ऑनलाइन, दैट इज टोटली ऑन द बेसिस ऑफ ऑनलाइन. तो LUT यहाँ पे फाइल कर दो, तो यहाँ आप फाइल करो बॉन्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट. बेसिकली प्रेफरेबल होता है कि आप यहाँ पे LUT फाइल कर दो बिकॉज इज ऑनलाइन केस, राइट. तो बॉन्ड फाइल करने के लिए आपको फिजिकली वहां जाके बॉन्ड फाइल करने पड़ते हैं. बट नॉर्मली द केस इन GST इज आप LUT फाइल करें, ऑनलाइन फाइल करें, that is easily available on the portal in the column of the services. So just you have to go to file LUT, आपको वहाँ पे अपनी डिटेल्स देनी पड़ती हैं, आपको वहाँ पे डेट्स मेंशन करनी पड़ती हैं. वेरी इजी वन टू फाइल दैट एंड आपको जो उसकी रिसिप्ट है, जो एप्लीकेशन है, वो इमीडिएटली अवेलेबल हो जाती है. So when you are going to file the LUT, it's not like that कि आपने LUT फाइल कर ली, then you wait for the months. अच्छा, अभी तक मैं एक्सपोर्ट नहीं करा, अभी तक मैंने एक्सपोर्ट नहीं करा. अगर आपने LUT ऑनलाइन फाइल कर दी है और आपने 3 महीने तक फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ LUT 3 मंथ्स तक अगर आपने गुड्स एक्सपोर्ट नहीं करे हैं, देन यू हैव टू पे टू द गवर्नमेंट द टैक्सेस जो आप एक्सपोर्ट करने वाले थे, राइट. जो आइटम में आप एक्सपोर्ट करने वाले थे, यू हैव टू पे द टैक्सेस विद इंटरेस्ट टू द गवर्नमेंट विद इन 15 days. So here it is, the person availing the option to supply the goods or services without payment of IGST shall furnish prior to the export. That means अगर आज मैंने LUT फाइल करी है, तो prior to the export आपको पहले LUT फाइल करनी है, then you have to go for the export only. So prior to the export, LUT or bond, preferably LUT, I'll prefer always LUT in the form of GSTR refund 11 to the Judicial Commissioner. This is the case जब आपने एक्सपोर्ट नहीं किया है, तब आपको जो टैक्सेस है along with the interest आपको जुडिशियल कमिश्नर को डिपॉजिट कराने होते हैं विद इन द 15 days. दैट मीन्स अगर मैंने आज LUT फाइल करी है, टुडे इज 7th of July, राइट. सो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो डेट विल बी 7th of October. 7th of October से 15 days के अंदर अंदर आपको गवर्नमेंट को, दैट इज जुडिशियल कमिश्नर को, आपको पे करने पड़ेंगे अमाउंट ऑफ टैक्सेस प्लस इंटरेस्ट. और अगर आप अपनी अमाउंट पे नहीं कर पाते within 15 days और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 months, अगर आप अमाउंट नहीं पे कर पाते, तो आपका जो विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्सेस का जो क्लॉज था फ्रॉम द गवर्नमेंट, वो अबॉलिश कर दिया जाएगा. दैट मीन्स वंस जो आर लाइक आपने वंस वो फैसिलिटी जो है वो रॉन्गली यूज करी है, या आपने LUT फाइल करके एक्सपोर्ट नहीं करा है, तो गवर्नमेंट जो आपको फैसिलिटी है विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, वो आपकी अबॉलिश हो जाएगी. आप दोबारा विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स एक्सपोर्ट नहीं कर पाओगे. So it's a 3 months case in case of goods, and if you're going by the services, then the case is of 1 year. आप LUT फाइल करने के 1 साल तक अगर अपनी सर्विसेज नहीं देते हो, तब आपको 15 दिन के अंदर अंदर गवर्नमेंट को टैक्स प्लस इंटरेस्ट जमा कराना पड़ता है. और अगर आप जमा नहीं कराते हो, तब उसके बाद आप विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स जो एक्सपोर्ट नहीं कर पाओगे. बट जब आप एक्सपोर्ट अपना जब टैक्स जमा करवा देते हो गवर्नमेंट को, उसके बाद आपकी फैसिलिटी वो रिवाइव हो जाएगी, उसके बाद आप पे कर पाओगे. बट अगर आप नहीं जमा कराते, तो आपको हमेशा जो एक्सपोर्ट करना है वो विद पेमेंट ऑफ टैक्स ही करना पड़ेगा. आप विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स एक्सपोर्ट नहीं कर पाओगे, बिकॉज दैट राइट इज विथड्रॉन बाय द गवर्नमेंट, सो यू वोंट बी एबल टू डू दैट एज वेल. बट जो यहाँ पे रिफंड है, द मेन थिंग इज हाउ टू कैलकुलेट द रिफंड. ओके, बिकॉज यहाँ पे एक बड़ा सा क्रूशियल सा फॉर्मूला उन्होंने हमें बताया है टू क्लेम द रिफंड फ्रॉम द गवर्नमेंट, बिकॉज इट्स नॉट ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, बिकॉज यहाँ पे आप टैक्स नहीं पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को. So that will be on the basis of your turnover, your services, your ITC. So यहाँ पे जो सर्विसेज है, जो यहाँ पे आपको सर्विसेज, यहाँ आपको गुड्स हैं,
जो आप अपनी पेमेंट कर रहे हो वो दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ रिफंड ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर, एडजस्टेड टर्नओवर, नेट आईसी। तो आई एक्सप्लेन एवरीथिंग कि आपको इसमें क्या क्या कब कब इंक्लूड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स रिफंड अमाउंट, जो आपने गवर्नमेंट से रिफंड क्लेम करना है वो किस बेस पे है। अगर आपकी टोटल टर्नओवर है, आई गेट द डिटेल्स, अगर आपकी टर्नओवर है लाइक 1 करोड़, राइट, 1 करोड़ टर्नओवर में से जो आपकी एक्सपोर्ट है, जो रिलेटेड टू एक्सपोर्ट है, इफ इट्स लाइक 60%, सो दैट मीन्स जो आपका आईटीसी अवेलेबल है उसका नियर अबाउट आपका 60% रिफंड आप क्लेम कर सकते हो। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इन लॉमैन लैंग्वेज कि आपको क्या लॉजिक है इसके बेस पे कि क्यों ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना पड़ता है। Normally, it's turnover of zero rated supply. That means all exports including in it. सारा जो आप एक्सपोर्ट्स कर रहे हो, वो सारी जो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स हैं, जो आपकी सर्विसेज हैं, वो आपकी सारी यहाँ से इंक्लूड हो जाएंगे। तो टोटल एडजस्टेड टर्नओवर, जो आपका टोटल टर्नओवर है, जो टोटल आपका ईयरली आपका टर्नओवर है, उसके बेसिस पे इनटू नेट आईटीसी। नेट आईटीसी उसकी भी आपको मैं एक एक्सप्लेनेशन बता देती हूँ, तो यू आर क्लियर अपॉन इट कि हम कैसे उसका रिफंड क्लेम कर सकते हैं। Refund amount, we'll call it maximum refund admissible. That means this is maximum amount. Why I'm calling it a maximum amount? Because यहाँ पे एक और provision है जो आपको compile करनी पड़ती है, और एक और provision है जिसको आपको cope up करना पड़ता है, तब आपको कह सकते थे हाँ this is my maximum amount. Because provisions are like lower of them. आपको 3 calculations करनी है, then you have to find out इसमें से lower of them क्या है, then you will be able to get the refund from the government. So this refund amount is kind of maximum refund admissible from the government. Yes. Second one is turnover of zero rated supply, जिसकी related आपने LUT फाइल करी थी, आपने बॉन्ड फाइल किया था विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, जो आपकी सारी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज हैं या सारे एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स हैं, वो दोनों इसमें इंक्लूड हो जाएंगी। सो इट्स अ टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स प्लस टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज, दोनों को मिला के विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स जो आपने किया था, दैट विल बी योर टोटल टर्नओवर जीरो रेटेड सप्लाई। नेट आईटीसी, वेरी इंपॉर्टेंट वन, नेट आईटीसी। हमें कैपिटल गुड्स का रिफंड नहीं मिलता, कैपिटल गुड्स का रिफंड हमें गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिलता। तो जब हम रिफंड क्लेम कर रहे हैं, इट्स विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्सेस, जो हमें नेट आईटीसी क्लेम करना है, दैट विल बी ओनली इनपुट सर्विसेज एंड इनपुट गुड्स। हमें कैपिटल का रिफंड इसलिए नहीं मिलता क्योंकि वो जो गुड्स हैं, जो हमारे फर्नीचर है, हमारी मशीनरी है, जो हमने जो कैपिटल गुड्स हमारी परचेज की हुई है, दैट वी आर यूजिंग फॉर आवर बिजनेस। तो वो इनपुट हमें जो क्लेम किया है वी आर ऑलरेडी क्लेम्ड इट। तो यहाँ पे हम इसके एक्सपोर्ट के बेस पे उसको हम उसका रिफंड नहीं क्लेम कर सकते, बिकॉज दैट विल बी लाइक अनफेयर। हम डबल एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहे हैं इफ यू आर डूइंग इट, so that won't be available, तो वो आपको नहीं एलिजिबल होगा इसके लिए। so net ITC it's available input of goods and services of during relevant period। जिस पीरियड के क्लेम में, जिस पीरियड के रिलेटेड आप रिफंड क्लेम कर रहे हो, उस पीरियड के रिलेटेड जो आपका नेट आईटीसी था वो यहाँ पे आ जाएगा। एडजस्टेड टोटल टर्नओवर, एडजस्टेड टोटल टर्नओवर इट्स टोटल वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स, वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई अदर देन जीरो रेटेड सप्लाई। तो दैट मीन्स आपके टोटल टर्नओवर है, राइट, वो आपकी सारी यहाँ पे इंक्लूड हो गई। इफ योर टोटल टर्नओवर इट्स लाइक 10 करोड़, राइट, एंड योर जो टर्नओवर रिलेटेड टू द जीरो रेटेड सप्लाई इट इट्स 1 करोड़, तो नेट आईटीसी के बेस पे आपको जो आपका रिफंड है वो परसेंटेज आपको मिल जाएगी कि इतने परसेंट का जो रिफंड आपको मिल सकता है, दैट विल बी मैक्सिमम वन। इतने परसेंट का एक्सपोर्ट का जो आपको रिफंड मिल सकता है, दैट मीन जितना आपका आईटीसी होगा उसके उतने परसेंट का रिफंड आपको मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेशन ऑफ योर टर्नओवर। This was the talking about कि why if we call it a maximum one, because here we have a column जहाँ से हमें इसके lower base पे लेना पड़ेगा and that will be our maximum. That means lower from 3 of them, that will be our maximum refund. So फिर 3 calculations यहाँ पे देखनी पड़ती हैं to get the refund from the government in the basis of export without payment of tax, जो कि नहीं था हमारा with payment of tax में, because with payment of tax we have filed the return, pay the tax and get the refund from the government. तो बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, अगर हमारी बहुत बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन हैं तो वहाँ पे हमें टैक्स तो पहले पे करना पड़ता है, एंड इट्स अ काइंड ऑफ अ ब्लॉकेज फॉर द मैन्युफैक्चरर्स, अ काइंड ऑफ अ ब्लॉकेज फॉर द पर्सन बिजनेसमैन, बिकॉज वो बहुत बिग अमाउंट्स में जाता है जो आपका एक्सपोर्ट होता है, so they don't prefer the things, they want to get the compliances thing. So it's a very good opportunity for the professionals if you're working for the refunds, because आपके वहाँ पे बहुत सारे doors open हो जाते हैं
and it's a very good thing because mostly businessmen are concerned to get the refund from the government. So yes, it's a refund to be granted is a lower of the following. Why lower of the following? Because यहाँ पे जितना बैलेंस आपको आपकी क्रेडिट लेजर में अवेलेबल होता है उससे ज्यादा आप रिफंड नहीं क्लेम कर सकते। जितना आपका बैलेंस आपकी क्रेडिट लेजर में अवेलेबल है उससे ज्यादा आप रिफंड नहीं क्लेम कर सकते। सो आई एम गोइंग टू इलैबोरेट विद द एग्जांपल्स। मैंने स्क्रीनशॉट्स कुछ कैप्चर किए हुए हैं रिलेटेड टू दिस ओनली फ्रॉम द ऑनलाइन पोर्टल एंड फ्रॉम द आईजीसी गेट एज वेल, ताकि मैं दोनों आपको कंप्लायंस करके और आपको बता सकूं कि कैसे आपने अमाउंट्स यहाँ पे बैलेंस करनी है। So first is refund calculated as per the formula. A formula I am here talking about this formula जो हमने अभी किया था related to the refund. So one amount is कि जो आपने वहाँ पे calculation की है, you have to put it here कि आपको यहाँ पे कितनी amount आ रही है. Then is balance in electronic credit ledger at the end of tax period. Balance in electronic credit ledger at the end of tax period. That means आपका जो टाइम ड्यूरेशन है जिसके रिलेटेड आप रिफंड क्लेम कर रहे हो उस टाइम पे आपका जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर उसमें बैलेंस कितना अवेलेबल था, उसमें बैलेंस कितना अवेलेबल था। नेक्स्ट इज एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। अगर हमने आज मैंने जो रिफंड क्लेम करना है, आई नो अबाउट इट कि मेरे आईजीएसटी में मेरे 4,50,000 पड़े हुए हैं, सो आई कैन क्लेम द रिफंड। बट जब मैंने रिटर्न फाइल करी तो मेरा वो आईजीएसटी यूज हो गया, तो मेरा नियर अबाउट लगा सकते हैं मेरा 1,50,000 यूज हो गया। So balance and available till on date is only 3 lakh. So you won't be able to get the refund from the government of 4,50,000 because it's lower of them. So at that point of time your refund will be 3 lakh because it's lower. So अगर आपका जो refund calculation as per the formula उससे भी lower है, that means अगर आपका as per the formula आ रहा है 2,50,000, I'm taking a round of figures, okay, so that confusion ना हो. So I'm taking round of figures. So 2,50,000 आ रहा है. That means इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में पहले कितना अवेलेबल था 4,50,000, एट द टाइम ऑफ कितना अवेलेबल था 3 लाख, और फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आ रहा है 2,50,000. So from the lower of the following your maximum refund will be 2,50,000. तो यहाँ पे 4,50,000 क्लेम नहीं कर पाओगे because the lower one is 2,50,000. This was the electronic ledger that I'm talking about. So make it more clear about the practical aspects के वहाँ पे आपको कैसे आपको मैनेज करना है. Amount eligible for the refund. Amount eligible for the refund. So here balance in electronic credit ledger at the end of tax period for which refund is claimed. After return for this period is filed. That means मैंने इस पीरियड के इस महीने मंथ के रिटर्न फाइल कर चुकी हूँ, और मेरा जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो यहाँ पे मेरा बैलेंस शो कर रहा है दैट इज आईजीएसटी 1,25,000, सेंट्रल टैक्स 1,01,000 and state tax again 1,01,000. I've taken this a very abbreviated figures कि आपको बहुत confusion वाला ना हो, but yes this is figures are very taken from one of my clients. Okay, so balance in electronic credit ledger at the time of filing of refund application. Got the point? So एक बार हमने जो रिटर्न अपनी फाइल कर दिया, यहाँ पे हमारे क्या शो हो रहा था, जब हमने एप्लीकेशन फाइल करनी है तब हमारे क्या शो हो रहा है. So that will be minimum from both of them. IGST 1,25,000 मैंने जब एप्लीकेशन फाइल करी मैं रिटर्न अपनी एक और फाइल कर चुकी थी, राइट. सो दैट मीन्स मेरा वो जो क्रेडिट है 1,25,000 वो एक और बार यूज हो गया. तो मेरे पास जो बैलेंस बचा है रिफंड क्लेम का दैट इज ओनली 0. तो दैट मीन्स आप वहां पे रिफंड जो है आईजीएसटी के कॉलम में आपके पास कोई इनपुट नहीं बचा हुआ, आपके पास कोई बैलेंस नहीं बचा हुआ, तो आपको जो रिफंड वहां पर क्लेम होगा आईजीएसटी के कॉलम में दैट विल बी 0 बिकॉज आपके पास कोई भी क्लेम नहीं है. तो इन द सेंट्रल टैक्स आपका कोई यूज नहीं हुआ, इन द स्टेट टैक्स आपका कोई भी यूज नहीं हुआ. दैट मीन्स जो अल्टीमेटली आपने जो रिफंड क्लेम करना था दैट वाज ऑफ 3,27,000, और आपकी रिटर्न फाइलिंग के बाद मतलब एप्लीकेशन जब आप फाइल करने लगे अपनी जो रिफंड की, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपका जो आपके पास इनपुट बचा हुआ था दैट वाज 2,02,000, and at the end of the time the minimum from both of them is 2,02,000. So you will be able to get the refund for only 2,02,000, but that is not as per the formula. इसके बाद आपको formula भी apply होगा, then will be lower of 3 of them. So I have compiled only 2 things over there, then third will be of the formula. तीन में से जो lower होगा वो आपका maximum refund होगा,
तो उसके ऊपर आप गवर्नमेंट से क्लेम नहीं कर पाओगे। तो इसके बाद इसे क्लिक टू व्यू इलेक्ट्रॉनिक लेजर, राइट, दैट मीन्स आप इलेक्ट्रॉनिक लेजर में वापस जाओगे, तो जो आपका एक्चुअल अमाउंट एज ऑन द डेट होगा दैट विल बी विजिबल ओवर देयर। होप देयर इज नो कंफ्यूजन इन दिस, बिकॉज दिस इज इम्पोर्टेंट पार्ट, बिकॉज जब अगर आपकी इन कैलकुलेशंस में कोई भी दिक्कत आती है, तो अगेन वन थिंग, एक गलती आप करोगे तो गवर्नमेंट एक गलती क्या करेगी, गवर्नमेंट आपको रिफंड नहीं देगी, बिकॉज दिस इज योर फेवरेबल एरिया that you want refund from the government, but it's a very hard area for the government to give the refund to you. So they are like, you have to make the proper compliances. If you're making the proper compliances, then it's really fine, then you'll get the refund from the government. But if you are not making the proper compliances, so that will be very hard to get the refund from the government. Okay. नाउ कमिंग टू द डॉक्यूमेंटेशन, आपको साथ में डॉक्यूमेंटेशन क्या सबमिट करनी है, बिकॉज जब आप एप्लीकेशन फाइल करते हो तो मैं आपको आगे वो भी एप्लीकेशन कैसे फाइल करनी है वो भी आपको बता दूंगी। जब आप एप्लीकेशन फाइल करते हो तब आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन है जो आपके पास मेंटेन होने चाहिए। यू हैव टू मेक द पीडीएफ फाइल ऑफ इट, ऑल द डॉक्यूमेंट्स यू हैव टू अटैच इन अ पीडीएफ फाइल एंड देन अटैच टू द एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आप नहीं कर पाते हो तो आपको कोई भी एक डॉक्यूमेंट अगर नहीं अवेलेबल है, दैट विल बी डिफिकल्ट वन टू गेट द रिफंड फ्रॉम द गवर्नमेंट, बिकॉज आपको ये सारे कंप्लायंसेस करने हैं। तो here the most important fact, most important, जिसके बिना आपको रिफंड मिलना काइंड ऑफ इम्पॉसिबल थिंग इज फॉर्म 2A फॉर द रेलेवेंट पीरियड। फॉर्म 2A फ्रॉम द रेलेवेंट पीरियड, यहाँ पे हम बहुत इजीली कह देते हैं कि हाँ जिस फॉर्म 2A की मैचिंग करनी है, बट एट द टाइम ऑफ क्लेमिंग द रिफंड दिस इज वेरी 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 मच इम्पोर्टेंट, बिकॉज गवर्नमेंट ने यहाँ पे इतनी सारी चेंजेस लाए हैं, इतने सारे आपने नोटिफिकेशन आए हैं कि टिल द टाइम जो आज का सिनेरियो है और जो पहले का सिनेरियो था रिलेटेड टू द रिफंड इज वेरी मच डिफरेंट वन। फर्स्टली क्या था कि अगर आपके पास जो इनवॉइसेस हैं दैट्स लाइक काइंड ऑफ 1000, आपके जो टाइम पीरियड के रेलिवेंट टाइम पीरियड के जो आपके इनवॉइसेस हैं दैट इज 1000, अगर उसमें से आपके 200 इनवॉइसेस या 100 इनवॉइसेस जो है वो वहाँ पे 2A में नहीं अवेलेबल हैं, 100 इनवॉइसेस आर गिविंग द एस्टिमेट कि वो वहाँ पे 2A में नहीं अवेलेबल है, तो व्हाट यू हैव टू डू इज आपको जो 99 जो आपके 900 इनवॉइसेस हैं वो आपको गवर्नमेंट को सबमिट करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ वो इनवॉइसेस गवर्नमेंट को सबमिट करने की जरूरत है जो आपके 2A में विजिबल नहीं है। जो आपके 2A में विजिबल है उसके लिए जस्ट हैव टू अटैच द 2A फाइल विद द गवर्नमेंट, विद द पोर्टल, विद द जो फाइल आप अटैचमेंट क्रिएट करोगे, जस्ट आपको वो फाइल जो अटैच करनी है, बिकॉज वहाँ पे सारे इनवॉइसेस अवेलेबल हैं, बिकॉज आई एम कंसिडरिंग इट कि 1000 में से 900 इनवॉइसेस वहाँ पे विजिबल हैं, सिर्फ 100 इनवॉइसेस हैं जो नहीं विजिबल हैं, और जो 100 इनवॉइसेस नहीं विजिबल होंगे सिर्फ आपको वो 100 इनवॉइसेस साथ में अटैच करने पड़ेंगे। You have to show to the government कि yes I have available, these invoices are available to me, so if you able to get the refund, आप वहाँ से जो टोटल रिफंड है 1000 इनवॉइस का वो क्लेम कर सकते हो। बट दिस वाज अ प्रायर जीएसटी सिनेरियो। उसके बाद गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन लाई थी अक्टूबर 2019 में, जहाँ पे उन्होंने कहा था कि आपको जो इनवॉइसेस नहीं अवेलेबल है आपके जीएसटी 2A पोर्टल पे, दैट मीन्स जो आपके इनवॉइसेस ऑनलाइन नहीं शो हो रहे, यू विल बी एबल टू गेट द रिफंड फ्रॉम द गवर्नमेंट ओनली 20% ऑफ इट। अगर आपके 200 इनवॉइसेस नहीं विजिबल हो रहे तो उसके जो इनपुट है आपका उसका ओनली 20% अमाउंट की आप क्लेम कर सकते हो। आपको 100% जो क्लेम पहले अवेलेबल था जो हम दे रहे थे वो आपको 100% क्लेम जो नहीं मिलेगा, यू एबल टू गेट ओनली 20% क्लेम ऑफ इट। उसके बाद आफ्टर फ्यू मंथ्स एक और नोटिफिकेशन आई जहाँ पे उन्होंने कहा अब आपको 20% भी नहीं मिलेगा, अब आपको 10% क्लेम ही मिलेगा ऑन द बेसिस ऑफ रिफंड। रिफंड में आपको जस्ट 20% क्लेम ही मिल पाएगा ऑफ द टोटल वन, राइट। तो अगर आपके जो इनवॉइसेस हैं वो कम विजिबल हैं, जो आपके इनवॉइसेस हैं वो टोटली नहीं विजिबल हैं, राइट, 2A में आपके कंप्लीट नहीं आ रहे, सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपको फुल रिफंड नहीं मिल सकता। आपको जो रिफंड तभी मिलेगा जब आपके पूरे इनवॉइसेस अवेलेबल होंगे। इन मार्च 2020 अगेन दे कम अप विद एन नोटिफिकेशन, और वहाँ पे नोटिफिकेशन में उन्होंने कहा डिस्क्राइब किया जो आपके इनवॉइसेस ऑनलाइन विजिबल नहीं हो रहे आपको उसका रिफंड नहीं मिल पाएगा। फर्स्टली इट वाज लाइक दैट कि आपको रिफंड मिल जाएगा, आप अपने इनवॉइसेस दिखा दें। सेकेंड पॉइंट उन्होंने कहा आपको जो रिफंड है वो तब उतना मिलेगा, सिर्फ 20% मिलेगा। देन दे सेड आपको जो रिफंड मिलेगा आपको सिर्फ 10% मिलेगा।
एंड देन दे सेड आपको उसका रिफंड नहीं मिलेगा। तो दैट मीन्स जो आप रिफंड क्लेम कर रहे थे गवर्नमेंट से, तो वो आपको नहीं मिल पाएगा जब तक आपके 2A में इनवॉइसेस नहीं हो रहे। तो उसका रीजन क्या है? गवर्नमेंट इज लाइक प्लानिंग विद डे बाय डे विद नोटिफिकेशन कि जो कंप्लायंसेस करने हैं वो आप आपस में करें। दैट मीन्स गवर्नमेंट को अपना जो टैक्स है वो क्लेम करने के लिए एफर्ट ना करनी पड़े। अगर आपको रिफंड लेना है, ऑब्वियसली यू विल कनेक्ट विद द क्लाइंट कि तुम अपनी रिटर्न फाइलिंग करो, तुम अपनी रिटर्न फाइलिंग करो, मुझे रिफंड लेना है। तो उसमें क्या है, आपको एफर्ट करना पड़ रहा है अपना रिफंड क्लेम करने के लिए, बट गवर्नमेंट को आपसे टैक्सेस क्लेम करने के लिए एफर्ट नहीं करना पड़ा। तो डे बाय डे क्या है, दे आर मेकिंग इट मैंडेटरी फॉर एवरीवन कि आप अपनी रिटर्न्स खुद फाइल करें, आप अपनी रिटर्न्स जो आपने क्लाइंट से फाइल कराएं, एंड अगर कंप्लायंसेस प्रॉपर आप अपने एंड पे कर रहे हो, देन यू विल बी एबल टू गेट द रिफंड फ्रॉम द गवर्नमेंट। अगर आप अपने कंप्लायंसेस नहीं कर पा रहे हो, तो दैट मीन्स आप गवर्नमेंट से रिफंड नहीं क्लेम कर पाओगे। तो टिल नाउ द अपडेट सिनेरियो इज जितने इनवॉइसेस आपके 2A में शो होते हैं, बिकॉज एज पर द नोटिफिकेशन गिवन बाय द गवर्नमेंट इन द मार्च 2020, कि जो भी आपके इनवॉइसेस हैं जो आपके अपलोड ऑनलाइन O2A में शो कर रहे हैं, आप उन्हीं का रिफंड ले पाओगे। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी मंथली मैचिंग करनी पड़ेगी, जो अभी भी लोग करना शुरू करते हैं, बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ IFIF आपके जो 2A आपका ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहा है, आपकी जो 2B ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहा है, then you will be able to get the refund in 3B, then you able to get the claim of ITC in 3B। तो वो सारी प्रोसेस गवर्नमेंट ने इसीलिए शुरू कर दिए हैं, बिकॉज उनको एफर्ट ना करना पड़े, ताकि वो कंप्लायंस के बेस पे आपके टैक्सेस ले सके, but you have to make your own effort to get the taxes recovered from the your next client your buyer, right? So this is very important topic and this is very important point कि 2A में शो करना बहुत जरूरी हो गया है। So next is statement of export invoices and IFRS and shipping bill and EGM। इसका मैंने आपको एक अटैचमेंट मैंने आपके साथ रखी हुई है, आई शो इट आउट कि आपको वहां पे क्या शो करना है। ओके, दिस इज द अटैचमेंट ऑफ एक्सपोर्ट इनवॉइसेस। ये आपको जो फॉर्म है वो साइड में फिल करके उसमें साथ में अटैचमेंट करनी पड़ती है। दिस विल कॉल एट स्टेटमेंट नंबर 3 दैट रूल 892B एंड रूल 892C। ये आपको डॉक्यूमेंटेशन हैं जो आपको मैंडेटरी साथ में अटैच करने पड़ेंगे व्हाइल क्लेमिंग द रिफंड फ्रॉम द गवर्नमेंट। एंड दिस आई एम डिस्कसिंग अबाउट द स्टेटमेंट ऑफ एक्सपोर्ट इनवॉइसेस इन द सेकंड कॉलम, जो आपको अपना साथ में अटैच करना है। व्हाट इज इट? Get the details. What is it? This is just your basis of your shipping bill, your invoice, your documentation। उसके बेस पे आप गवर्नमेंट को एक कंपाइल करके बताओगे कि मैंने ये डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करे हुए हैं और ये डॉक्यूमेंटेशन के बेस पे मेरी ये वैल्यू है। लाइक एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, accumulated ITC, वेरी इंपॉर्टेंट वन, accumulated ITC। दैट मीन्स जो आपने फाइल सबमिट करी है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ 1000 इनवॉइसेस और दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ 900 इनवॉइसेस। तो वो चीज आपको यहाँ से विजिबल हो जाएगी, बिकॉज अगर आप 1000 के इनवॉइस के बेस पे क्लेम कर रहे हो और आपका 2A में नहीं शो हो रहा, अगर आप 1000 इनवॉइसेस के बेस पे क्लेम कर रहे हो और 2A में नहीं शो हो रहा, तो गवर्नमेंट यहाँ पे आपको एक्यूमुलेटेड ITC के बेस पे रिफंड नहीं देगी। तो यहाँ पे जो आप फॉर्म्स फाइल कर रहे हो, बिकॉज 2-3 फॉर्म्स आर देयर, डिक्लेरेशंस आर देयर जो आपको फाइल करनी है। सो इन दिस बेसिस फर्स्ट ऑफ ऑल इज डॉक्यूमेंट्स डिटेल, टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, नंबर, डेट, वैल्यू, वो आपको सब यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। एंड दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज, टैक्सेस जो आपके हैं वो सबमिट करने पड़ेंगे। शिपिंग बिल की डिटेल, अगेन व्हाट गवर्नमेंट इज डूइंग इज आपको ये बता रही है कि क्या वो गुड्स आपने एक्चुअली में एक्सपोर्ट करे हैं। अगर आपके पास शिपिंग बिल अवेलेबल है, अगर आपके पास बिल ऑफ एक्सचेंज अवेलेबल है ऑन द बेसिस ऑफ इम्पोर्ट, तो अगर आपके पास वो अवेलेबल है, दैट मीन्स आपने जो गुड्स हैं एक्सपोर्ट करे हैं। बट अगर आपके पास उसकी डिटेल्स अवेलेबल नहीं है, आपके पास EGM की डिटेल्स अवेलेबल नहीं है, दैट इज मैंडेटरी इन द बोथ प्रोसेस, आइदर इट्स विद पेमेंट ऑफ टैक्स और आइदर इट्स विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। आपके दोनों के केसेस में आपको वो चीजें, आपको शिपिंग बिल और आपका जो EGM है, वो दोनों चीजें मैंडेटरी हैं। दोनों में से एक भी आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो चाहे आप विद पेमेंट ऑफ टैक्स का रूट पकड़ लें, चाहे विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स का रूट पकड़ लें, आप गवर्नमेंट से रिफंड नहीं क्लेम कर सकते। So these two are mandatory one while you are getting the export turnover। तो आप अपने EGM फाइल करना ना भूलें, बिकॉज मेनली क्या होता है कि आपका जो EGM फाइल करना होता है वो कस्टम हाउस में फाइल करना होता है। तो वो अगर नहीं फाइल कर रहे हैं
you won't be able to get the refund from the government. Next is BRC, that is बैंक reconciliation statement. So आपकी जो होती हैं वो आपको वहाँ पे साथ में अटैच करनी पड़ती हैं. FIR फॉरेन एक्सचेंज की जो स्टेटमेंट्स है वो भी आपको अटैच करनी पड़ती हैं. इफ बोथ आर नॉट अवेलेबल, अगेन आपका फॉर्म जो है प्रॉपरली फिल्ड नहीं है, तो जो 3-4 इनेक्चर्स हैं जो गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर रहे हैं आपको फिल करने के लिए इन द डॉक्यूमेंटेशन लिस्ट, अगर इसमें से एक भी आपका जो फुलफिल नहीं है, यू वोंट बी एबल टू गेट द रिफंड फ्रॉम द गवर्नमेंट. Next one is statement of inward supply of invoices. Inward supply of invoices के लिए this is the annexure. The annexure B, statement of invoices to be submitted with the application for refund of unutilized credit. तो जो आपका क्रेडिट वहां पे पड़ा हुआ है, जो आपका क्रेडिट आपके लेजर में है, उसके बेस पे जो आपको ये रिपोर्ट में यहाँ पे फुलफिल करनी है. अगर यहाँ पे जो डिफरेंस है आपकी क्रेडिट लेजर में, डिफरेंस है आपकी जो इनवॉइस की स्टेटमेंट में, अगर उसमें थोड़ा सा भी डिफरेंस आता है, अगेन द फैक्ट इज एरर, दैट मीन्स नो रिफंड. तो दैट मीन्स जो भी यहाँ पे आप अगर सोच रहे हो कि यस आई वांट टू प्रैक्टिस इन दिस एरिया, तो अगर थोड़ी सी भी आपके कंप्लायंसेस में, थोड़ी सी भी आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें थोड़ी सी भी गलती होती है, तो दैट मीन्स आपकी जो फाइल है वो महीनों तक वहाँ पड़ी रहेगी. बट अगर वो करेक्ट है, तो दैट मीन्स यू आर गोइंग टू गेट द रिफंड फ्रॉम 7-10 days. So it's that much quick thing. बट अगर नहीं है, तो दैट मीन्स unending time can be both, because one rejection, then that means आपकी फाइल वो लिंकर ऑन करते जाएगी. So that will be kind of very much delay for the end, because I'm actually dealing in the refunds. तो जब भी हमारी कोई फाइल डिले करती है, तो that's like वो डिले होता चलता है. So better is to complete your documentation before submitting the file to the government. Here what is supplier GSTN of the supplier, very much mandatory. अगर वहाँ पे एक भी गलती है, because वन को आई रीड किया जाता है, राइट. तो अगर एक भी वहाँ पे गलती है, जीरो को आप ओ रीड करते हो, एक भी वहाँ पे कोई गलती है, so basic thing is like we are into the PAN based area, one mistake, that means file is gone, so you won't be able to get the refund. So GSTN, name of the supplier, right. So better is to कि पहले आप GSTN अपनी GST वेबसाइट पे उसका प्रॉपर चेक करें, उसकी कितनी रिटर्न्स फाइल है, क्या नंबर अवेलेबल है, एक्टिव भी है कि नहीं एक्टिव है. So after that आपको अपना जो रिफंड क्लेम करें. इनवॉइस डिटेल्स, अगेन सेम थिंग, आपको यहाँ पे इनवॉइस डिटेल्स देनी है जो एक्चुअली में आपके पास है. इनवॉइस डेट वैल्यू, वेरी मच इम्पोर्टेंट वन. ओके, नेक्स्ट वन इज HCN कोड. नॉर्मली हम कहते हैं कि HSN कोड मैंडेटरी नहीं है, but if you are going to get the refund from the government, if you are going to claim the refund from the government, आप HCN कोड, आप HSN कोड नहीं लगाओगे, SAT कोड नहीं लगाओगे, so there will be a flaw for it, because what you are going to do it, they're going to catch it कि आप जो अमाउंट जो आप गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हो, जो आप सर्विसेज आपने एक्सपोर्ट कर रहे हो, क्या उसका कोड आपके इस कोड से मैच करता है, या फिर जो आप अपना रिफंड क्लेम कर रहे हो वो किसी और सर्विसेज के रिलेटेड कर रहे हो. So government gonna be strict one over here when they're going to refund, because it's not an easy task to get the money back from the government. We all know about it. So when we are going to get the money back from the government, so ये सारे provisions हमको बहुत strictly apply करने पड़ते हैं. Only then we'll be able to get the money back from the government. Next is your taxes, state central integrated cess, eligible ITC. Eligible ITC. क्या हम fill करेंगे यहाँ पे? Amount of eligible ITC and eligible ITC. Eligible ITC यहाँ पे जो आपके अकॉर्डिंग IGST CGST जो फॉर्म नंबर 2 के अकॉर्डिंग जो हमने ये कंप्लायंस के अकॉर्डिंग किया था रिलेटेड टू दिस, ये है आपका eligible ITC, राइट. एंड द नेक्स्ट वन जो कॉलम है आपका, दैट इज योर अमाउंट ऑफ एलिजिबल ITC. ये आपका जो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग था, दैट मीन्स जो आपने इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया था, यहाँ पे वो आएगा. That means both figures are different one. अगर यहाँ पे आप जो क्लेम है और आपको जो फॉर्मूला में क्लेम है, जो आप मैटर अपना लगा के दे रहे हो, if there is a difference, again no refund from the government. So these two forms are very much important, because यहाँ पे आपको एक 2A का compliance बहुत जरूरी है, एक आपको एक्सपोर्ट इनवॉइस का ये जो नेक्चर स्टेटमेंट नंबर 3 वो लगाना बहुत जरूरी है, एक आपको नेक्चर B लगाना बहुत जरूरी है, एंड उसके बाद आप एक और फॉर्म अटैच करेंगे जो कंपाइल्ड वे में होगा, दैट इज डॉक्यूमेंट ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स या सर्विस रिफंड स्टेटमेंट.
here you are calculating everything on the basis of the formula, you are calculating everything on the basis of final statement. If this is the final refund I'm going to demand from the government, this is the final refund that I have calculated from the government, and अगर आपने यहाँ पे mismatch है, refund बोलते हो, right? So all in all, what I'm trying to say is, गलती मत करो. If there is a mistake, if there is a chance, consult other person. If there is some confusion, consult other person, consult your colleague, and then get filed the refund. Next over here is copy of invoices which are not found in GST 28. ये मैंने आपको already first point में explain करा है कि जो आपके पास copies नहीं है invoices की, आप उसका refund नहीं claim कर सकते. और अगर आप अपने copies attach करनी है तो आप अपनी copies साथ में attach कर सकते हो. It will be on the discretion of the person. It will be on the discretion of the officer कि वो वहाँ पे अगर आपके पास copies available हैं कि आपको refund claim करते हैं नहीं. Next is declaration. Okay, declaration of incident not passed to any other person. Not passed to any other person. That means अगर आपकी invoice value है 100, उस पे आपने 18% लगाया है, that means it's 118. अगर आपने अपने कस्टमर से 118 रुपीज रिकवर कर लिए हैं, that means you have passed on the incident to the other person. तब आप गवर्नमेंट से रिफंड नहीं क्लेम कर सकते, because that will be a double thing. एक बार आप अपने कस्टमर से रिफंड अपने टैक्स क्लेम कर चुके हो, दूसरी बार आप गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हो कि यस आई वांट अ रिफंड फ्रॉम योर साइड. बट अगर आपने इंसिडेंट जो टैक्स का है वो कस्टमर को पास ऑन नहीं किया है, दैट मीन्स 100 रुपीज की अमाउंट के लिए आपने 100 रुपीज ही क्लेम करे हैं, देन यू विल बी एबल टू गेट द रिफंड फ्रॉम द गवर्नमेंट. और अगर आपने 118 क्लेम कर लिए हैं, दैट मीन्स नो रिफंड एट ऑल, बिकॉज आपने क्या किया है, आपने जो जो टैक्सेस था वो आपने अपने कस्टमर से रिकवर कर लिए हैं. So that means you have passed on the incident to your customer, you have passed on the incident to the buyer, so no refund from the government. And more importantly, इसकी जो declarations होती हैं, they demand from the chartered accountant कि उन्होंने जो incidents है वो pass on नहीं किया है बाहर से. So a request to the chartered accountant, अगर ऐसे आप certificate sign कर रहे हैं, तो make it a prior commitment कि आप उसको properly check कर रहे हैं कि yes उसने incident transfer नहीं करा है, then you are signing the document. अगर उसने incident जो tax का वो transfer कर चुके हो, then you cannot issue the certificate to that person. बट अगर अमाउंट जो है, जो रिफंड की अमाउंट है, इट्स लेस देन 2 लाख, अगर अमाउंट लेस देन 2 लाख है जो आपका क्लाइंट या कस्टमर आपको क्लेम कर रहे हो, तब आप सेल्फ डिक्लेरेशन भी दे सकते हो, तब चार्टर्ड अकाउंटेंट के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती है. चार्टर्ड अकाउंटेंट के सर्टिफिकेट की तब जरूरत पड़ती है if the amount you are claiming for the refund is more than 2 lakh. If it's less than 2 lakh, then self certification, self attestation from the concerned person, from the respective businessman will be sufficient enough. तब आपके रोल की जरूरत नहीं पड़ती है. That means your responsibility will be less in that case, बिकॉज आपको सर्टिफिकेशन अपने भी आप पे नहीं देनी है. बट अगर आपको सर्टिफिकेशन देनी है, सो यू हैव टू चेक प्रायरली क्या उसके अकाउंट में जो पेमेंट आई हुई है, क्या उसने जो अपने बायर से पेमेंट रिसीव किए हैं, दैट इज इंक्लूडिंग टैक्स और एक्सक्लूडिंग टैक्स. If it's export excluding tax, then it's pretty fine. You can issue the certificate. If it's including tax, that person cannot claim the refund from the government. Because after that, because the government is going to get very strict, because last जो आपने सेमिनार किया था, लास्ट जो आपने टॉपिक डिस्कस किया, दैट वाज इंस्पेक्शन सर्च एंड सीज. सो वो जो नोटिस हैं आजकल बहुत ज्यादा इशू होने शुरू हो गए हुए हैं. सो यू कैन नॉट रिलाई ऑन दैट कि हम कोई बात नहीं, हम सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं, विल डिस्कस अबाउट दिस थिंग लेटर ऑन. यू कैन नॉट डू दैट नाउ. Nowadays, be specific about it, where we are signing and why we are signing it. Next is a declaration that no duty back, refund claimed and goods not subject to export duty. कुछ गवर्नमेंट ने जो रिफंड्स हैं वो रिस्ट्रिक्ट किए हुए हैं. अगर एक प्रोडक्ट के ऊपर आपको एक्सपोर्ट ड्यूटी लग रही है, दैट मीन्स आप उसके ऊपर रिफंड नहीं क्लेम कर सकते. एक्सपोर्ट ड्यूटी मीन्स आप जो गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हो उसके ऊपर एडिशनल टैक्स पे करके फिर उसको एक्सपोर्ट कर रहे हो. इट्स अ काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्टेड गुड्स दैट गवर्नमेंट है रिस्ट्रिक्टेड कि ये गुड्स आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, राइट. अगर आपको एक्सपोर्ट करने हैं तो आपको इसके ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी देनी है. सो दैट पॉइंट ऑफ टाइम उस गुड्स को जो आप एक्सपोर्ट में लगे पौधों में क्या रखना है जब कभी उस गुड्स को जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, राइट, तो आपको उसके ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ेगी. आप उसको एक्सपोर्ट नहीं कर पाओगे.
सो दैट मीन्स आप डिक्लेरेशन दोगे कि हमने जो गुड्स एक्सपोर्ट किए हैं वो एक्सपोर्टेबल थे, हमने जो गुड्स एक्सपोर्ट किए हैं उसके ऊपर जो ड्यूटी ड्रॉबैक है हमने नहीं क्लेम किया, हमने जो रिफंड है उसके ऊपर पहले क्लेम नहीं किया हुआ। सो दैट विल काइंड ऑफ यू हैव टू ऐड अ डिक्लेरेशन टू इट कि हम उसके पहले रिफंड भी नहीं क्लेम कर सकते, हमने उसके ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी भी नहीं क्लेम की हुई है और हमने ड्रॉबैक भी नहीं क्लेम किया हुआ। व्हेन यू आर गोइंग टू गिव द कंफर्मेशन टू इट, देन यू विल बी एबल टू गेट द रिफंड। Next is declaration of ITC not claimed against nil-rated or exempted supply. हमने ऊपर ITC नहीं लिया हुआ because it's exempted one, आपको इसकी declaration देनी पड़ेगी। Next declaration is that no offense of any prosecution. Okay, so that means आपके ऊपर कोई केस नहीं चल रहा है, you are of a sound mind, you haven't go to the imprisonment, आपके ऊपर इस केस के रिलेटेड कोई declaration आपको फाइल करनी है। So that means this is the list of the documents that you have to submit when you exporting the goods without payment of tax. So अगर इसमें से एक भी documentation जो है आपका फुलफिल आप नहीं कर पाए तो आप वहाँ से गवर्नमेंट से रिफंड नहीं ले पाओगे। So you have to fulfill the whole detailed documentation and get the refund from the government. यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकल सिनेरियो में एक आपको फॉर्म दिखा देती हूँ जो आपको फाइल करना पड़ता है for claiming the refund from the government. I've taken the screenshot of it, so I'll share the screenshots with you. Hope it's visible to you, right? So the documentation over here is login to the online portal normally, right? Normally logging the client to online portal, and the refund column over here is the tab is refund column. Then click on the application for the refund. We call it RGT1, right? जो आपको यहाँ पे फाइल करना पड़ता है application for the refund. So firstly what you have to do is आप किस कॉलम में आप अपना रिफंड क्लेम कर रहे हो पहले आपको वो देखना पड़ेगा। So first of all is refund of excess balance in electronic credit ledger, refund of ITC on export and service without payment of tax and on account of supplies made to SEZ or SEZ unit and without payment of tax, right? तो यहाँ पे जो आपको रिफंड बिकॉज विद पेमेंट ऑफ टैक्स के लिए आपको कोई फॉर्म फाइल करने की जरूरत नहीं होती, आप जस्ट अपनी नॉर्मल जो आपकी रिटर्न्स हैं उसको प्रॉपर्ली फाइल करेंगे, यू विल एबल टू गेट द रिफंड फ्रॉम द गवर्नमेंट। बट विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स के लिए आपको फॉर्म फाइल करना पड़ता है। सो फॉर दैट आपको जो डिटेलिंग है जो मैंने आपको पहले लिस्ट बताई है, लाइक आपको शिपिंग बिल चाहिए, आपको EGM चाहिए, आपको 2A के इनवॉइस कंप्लायंस करने हैं, आपको सब कंप्लायंस, आपको डिक्लेरेशन देनी है, वो सब कंप्लायंस आपको इससे पहले करनी पड़ेंगी। इससे पहले करने के बाद देन यू कम टू इट एंड देन बिकॉज यहाँ पे आपको जो एप्लीकेशन है, जो आपके फॉर्म्स है वो आपको साथ में इसके अटैच करने पड़ते हैं, इसलिए आपको जो फाइल है वो PDF फाइल जो आपको पहले मेंटेन करनी पड़ेगी, देन यू कम टू द फाइलिंग द एप्लीकेशन। ओके, सो फर्स्ट कंप्लीट द एप्लीकेशन टू इट। सो हियर इट्स आप किस कॉलम में क्लेम कर रहे हो। मैंने जो आपको असेस दिखाया है, मैंने आपको असेस दिखाया है रिफंड ऑफ एक्सेस बैलेंस में इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। ओके, तो after that this was a step 1 that you log in, this was a step 2 that you have the claim related to refund excess client balance जो आप उसको चेक करते हो। then coming to the step 4 कि आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर है उसमें बैलेंस कितना कर रहा है, बिकॉज हमने जो आपका कॉलम पहले डिस्कस किया था कि आपको जो बैलेंस करना है हियर कि आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में बैलेंस कितना स्टैंड है। तो यही बैलेंस आप जब अपना रिफंड क्लेम करोगे तब आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएगा कि टुडे इन दिस सिनेरियो मेरे टैक्स में, मेरे कैश लेजर में इतना बैलेंस स्टैंड है, बिकॉज आप उससे ज्यादा कैश लेजर क्रेडिट लेजर आप उससे ज्यादा अपना रिफंड नहीं क्लेम कर पाओगे। सो बिफोर फाइलिंग योर एप्लीकेशन फॉर द रिफंड आपको यहाँ से पहले बैलेंस चेक करना पड़ेगा। सो इट balance amount available in an electronic cash ledger with the auto-populated form, that is fair enough, right? So here your amount is as per the example, your amount is central tax 25,000, state tax 23,000 and cess 25,000 और IGST column में यहाँ पे कोई amount नहीं show करी गई है, right? So this is your cash ledger. Coming to the next step, okay. Here the step number 5 is कि आपकी जो रिफंड आपने क्लेम करना है वो आपने कितना क्लेम करना है। दैट मीन्स एज पर योर कैलकुलेशन, एज पर दैट फॉर्मूला, एज पर द क्रेडिट लेजर एंड एज पर द कैश लेजर एंड एज पर द डेट ऑन विच द एप्लीकेशन इज फाइल्ड। सो ऑन विच द एप्लीकेशन इज फाइल्ड आपने ये अपना बैलेंस देख लिया, दैट इज 25,000 23,000, राइट? सो
तो यहाँ पे आपने जो बैलेंस देख लिया है दैट इज 25,000 23,000 लाइक दिस इज अवेलेबल ओवर हियर, राइट, दिस अमाउंट। तो इसमें आपको इससे बाद में आपको मैच करना पड़ेगा। इससे आपको बाद में मैच करना पड़ेगा, दैट विल बी फ्रॉम दिस थिंग लाइक, राइट। इसमें आपको जो क्या है, आपने जो रिफंड क्लेम करना है वो आपके यहाँ पे पुट करना है। रिफंड अमाउंट कैन बी लेस और इक्वल टू अवेलेबल इन द कैश रजिस्टर, राइट। सो रिफंड अमाउंट ज्यादा उससे नहीं हो सकती, रिफंड अमाउंट उससे कम हो सकती है, उससे इक्वल हो सकती है। बट जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर जिसमें आप अपना रिफंड क्लेम करने की कोशिश कर रहे हो विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, उसमें जितनी अमाउंट है उससे ज्यादा आप क्लेम नहीं कर पाओगे। दिस इज द फर्स्ट एंड प्रायर कंडीशन ओवर इट कि उससे ज्यादा आप नहीं क्लेम कर सकते। तो दिस इज द कॉलम जहाँ पे आपका जो टैक्स अमाउंट है विजिबल है, एंड दिस इज द कॉलम जहाँ पे आपको अपनी अवार्ड से जो रिफंड अमाउंट है जो आप क्लेम कर रहे हो वो एंटर करनी है। नेक्स्ट वन इज ओवर हियर, गेट बैक टू द रिफंड फॉर्म एंड गेट बैक टू रिफंड फॉर्म। क्या ये फॉर्म फाइल करने के बाद आपकी कोई आउटस्टैंडिंग डिमांड तो नहीं शो कर रहा? दैट मीन्स आपने जो अपनी रिफंड अमाउंट क्लेम करी हुई है, क्या आपने कैश लेजर से ज्यादा तो नहीं क्लेम करी? अगर आपने इस कॉलम में जो अपनी रिफंड अमाउंट है वो कैश लेजर कॉलम में जितना बैलेंस अवेलेबल है उससे ज्यादा क्लेम करी हुई है, तो ये यहाँ पे क्या करेगा, इस कॉलम में आपकी वो डिमांड शो कर देगा। इस कॉलम में आपकी वो डिमांड शो कर देगा बिकॉज दैट यू आर नॉट एलिजिबल टू गेट द रिफंड टिल दैट अमाउंट। अगर यहाँ पे जैसे आपका दिखा रहा है इससे 2000 आपने फिल किया हुआ है और हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल बैलेंस है एज पर द एग्जांपल इट्स 23, so you'll able to get the refund from the government, right? But if that balance is 23 और आपने क्या किया है, नॉर्मली होता है कि हमारे सेंट्रल और स्टेट का बैलेंस ही होते हैं, तो आपने क्या किया, दोनों में 25,000 अगर आपने वैल्यू ऐड कर दी है तो वन मिस्टेक, दैट मीन्स आपने क्या किया है, बैलेंस ज्यादा शो करिए, यू वोंट बी एबल टू गेट द रिफंड फ्रॉम द गवर्नमेंट, राइट, क्लियर वन। तो यहाँ पे आपको फिर बैलेंस आप आउटस्टैंडिंग डिमांड पे जाके एक बार चेक करना पड़ेगा बिकॉज फिल करने के बाद दिस कॉलम विल शो अप, बट आपको बैक जाके आपको देखना पड़ेगा क्या मेरी वहां पे कोई डिमांड तो नहीं आ रही है। डिमांड आ रही है दैट मीन इमीडिएटली उसको करेक्ट कर दें बिकॉज बाद में आपको उसका कोई वे आउट नहीं मिलेगा। एप्लीकेशन फाइल यू वोंट बी एबल टू गेट दिस थिंग करेक्टेड बिकॉज वहां पे लास्ट केस में हमने क्या किया था, हमने जीएसटी 1 में नेक्स्ट मंथ में करेक्ट कर लिया था। तो यहाँ पे वंस एप्लीकेशन इज फाइल्ड देयर इज नो रिवीजन प्रोविजन, तो यहाँ पे आपको पहले ही करेक्ट करना पड़ेगा। okay. नेक्स्ट पॉइंट इज ओवर हियर, अपलोड द डॉक्यूमेंटेशन। जो मैंने आपको पहले बताया था कि आपको अपनी पीडीएफ फाइल, जो सारे डॉक्यूमेंटेशन मैंने आपको बताया था कि ये आपको तैयार रखने हैं, वो अपनी पीडीएफ फाइल में वो आपको कंप्लीटली रेडी रखने हैं, scanned copies of it, right? Original scanned copies of it, not the duplicate one. यहाँ पे अगर आप डुप्लीकेट अटैच करोगे तो वो रिफंड नहीं क्लेम कर पाओगे। आपको ओरिजिनल कॉपीज जो अपनी इनवॉइसेस हैं, ओरिजिनल कॉपीज जो शिपिंग बिल की है, ओरिजिनल कॉपी जो ईसीएम की है, ओरिजिनल कॉपीज जो आपने एक्सपोर्ट का एनेक्चर स्टेटमेंट 3 फाइल करी थी सेक्शन 89 की, जो आपने इनवॉइस की फाइल करी थी, ओरिजिनल कॉपीज एंड डिक्लेरेशन ओरिजिनल कॉपीज आपको जो यहाँ पे स्टैंड कॉपीज आपको अटैच करनी पड़ेंगी। देन यू कैन प्रोसीड एंड maximum it's like a maximum supporting documents that's 4, right? So that means आपको declaration की एक complete फाइल बनानी पड़ेगी पीडीएफ, एंड देन इनवॉइसेस की एक कंप्लीट फाइल, देन जो एक्सपोर्ट के जो आपके इनेक्चर स्टेटमेंट थी उसकी कंप्लीट फाइल, देन यू कैन अटैच एंड देन यू विल बी एबल टू प्रोसीड वन। तो अगर एरर कोई होगा तो यही पे आपको शो कर देगा, एरर नहीं है, ओनली देन यू विल एबल टू प्रोसीड विद द नेक्स्ट। लाइक प्रीव्यू कर सकते हो बैंक अकाउंट आपका जो है जहाँ पे आपको रिफंड चाहिए, राइट? बैंक अकाउंट जो आपका रिफंड आपको चाहिए वो आप ध्यान से एक बार चेक कर लें, क्या वो मेरा बैंक अकाउंट क्लोज तो नहीं है, क्या इनऑपरेटिव तो नहीं है। वंस एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड अगेन लिंगर ऑन कर जाएगी, आप अपना रिफंड क्लेम करने में बहुत टाइम लगाओगे, राइट? सो हियर आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स जहाँ पे आपको रिफंड आने वाला है, प्री वैलिडेट में आप जाके अपनी जो फॉर्म है आपका रजिस्ट्रेशन है वहाँ पे जाके कोर नॉन कोर अमेंडमेंट्स में जाके आप चेक कर सकते हो, दैट विल बी अवेलेबल ओवर देयर। आप वहाँ पे अपडेट भी कर सकते हो देयर इज एनी चेंजेस, वहाँ जो अपडेशन करी होगी आपकी नॉन कोर कोर अमेंडमेंट्स में वो इमीडिएटली और ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो यहाँ से आप चेंज नहीं कर पाओगे, यहाँ से चेंज करने के लिए आपको वापस रजिस्ट्रेशन कोर अमेंडमेंट में जाना पड़ेगा, वहां से चेंज करोगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा।
So this is your thing, and after that there's one thing only, यहाँ DSC लगाएंगे, EVC करें, and you'll be able to file your application. This was the whole process of refund going to claim without payment of taxes. So I hope I have tried to clear it maximum one, because मैंने more of the time मैंने इसको कोशिश करी है कि मैं इसको practical aspect पे लेके चलूँ, मैं इसको practical basis पे लेके चलूँ, मैं इसको आपको theoretical way में explain मत करूँ, because I know about it कि theoretical way में तो हम online भी पढ़ लेंगे, और practical base में क्या problems आ रही हैं, practical base में हमें क्या क्या errors आ रहे हैं, हम कैसे compile करना, that is much necessary, because जब हम काम करते हैं और जब हम पढ़ते हैं, दोनों में काफी टाइम पे डिफरेंस आ जाता है, बिकॉज हमारा ऑनलाइन पोर्टल किसी और तरह से वर्क कर रहा होता है, और हमारे जो प्रैक्टिकल बेस है, जो हमारा थ्योरेटिकल हमारे पास सेक्शन है, वो थोड़े बहुत डिफरेंट हो जाता है. So try to keep it clear one. Okay, one query from which documents to be uploaded for refund in case of export of services. Same documentation you have to upload in case of export of services without payment of tax, right? Because there is no difference at all. Because जब आप services भी दे रहे हो, again you have the invoice, आप services भी दे रहे हो, again you have the bill from that, and you will be able to upload it. तो same सी चीजें invoice में भी आपको upload करनी पड़ेगी in case of the services. So there is no difference at all in that. But yes, जो services में है, आपको जो payment है वो आपके account में आने चाहिए. You will be able to get the refund only when जब आपके account में foreign currency आ गई है. Account में आपके foreign currency आ गई है, या फिर आपने जो don't have shipping bill, that is fine. Export to Nepal we don't have shipping bill. Reason being is पहले जम्मू कश्मीर में भी allowed नहीं था, पहले नेपाल में भी allowed नहीं था हमारा shipping bill. But at that point of time आपको EGM मिल जाता है, because आपको shipping bill अगर नहीं मिलता, आपको EGM मिल जाता है. तो दोनों में से नेपाल में अगर कर रहे हैं तो EGM आपको मिल जाता है, you will be able to get that. Because नेपाल के केसेस में नॉर्मली क्या होता है, हम यहाँ से दिल्ली एक्सपोर्ट कर रहे हैं और दिल्ली से हम आगे जा रहे हैं, तो हमारा जो वेंडर होता है, जो हमारा ट्रांसपोर्टर होता है, वो भी हमारा चेंज हो जाता है. बट अगर डायरेक्टली आप कर रहे हैं तो आपके पास EGM भी है, यू विल बी एबल टू डू दैट. Payment is received in Indian rupees. Okay. So payment is received in Indian rupees, and आपने जो services provide करी हैं वो नेपाल में करी हैं, right? So on that basis आप invoice के पेज पे जाओगे, right? Because invoice मैं आपको back जाती हूँ, because I guess आपने वो point शायद miss करा है. Let me go back to that point. Here it is. Okay. मुझे लगता है आपने वो point miss करा है, तो मैं आपको वापस उस point पे ले जा रही हूँ, because that was the very starting one. It was export of services where supply of service completed prior to the receipt of payment. That means one was like कि आप foreign currency में आपको amount मिल रही है, and one is like कि आपने invoice issue कर दिया है, but आपको foreign currency में amount नहीं आई है. आपको foreign currency में amount नहीं आई है, at that point of time issue of invoice will be your base, right? बिकॉज आपको जो अमाउंट है, लाइक द केस यू हैव डन इट, कि मुझे क्या नेपाल में मैंने सर्विसेज की हैं और जो मुझे करेंसी आई है बैंक अकाउंट में आनी चाहिए, राइट? बैंक अकाउंट में करेंसी आनी चाहिए. अगर आपको इंडियन रुपीज में भी करेंसी आई है तो दैट विल बी ऑन द बेसिस, आपको इनवॉइस के बेस पे अपना रिफंड इशू करना पड़ेगा. आपको जो करेंसी है वो भी बैंक अकाउंट में शो करनी पड़ेगी, बिकॉज हियर मैंने आपको एक स्टेटमेंट अटैच कराई थी, दैट विल कॉल्ड BRC. ओके, BRC ऑन द बेसिस आपके बैंक में जो ट्रांजेक्शन आई है, बैंक में जो स्टेटमेंट आपको एलिजिबल हुई है, बैंक में जो आपके पेमेंट्स आई हैं वो आपको साथ में अटैच करनी पड़ेंगी, दैट आई हैव रिसीव्ड द पेमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इंडियन करेंसी एंड प्लस दिस इज द इनवॉइस. So before proceeding for next, I hope export का, because export is a very wider topic. So export में से because normally हम export कर रहे हैं, but inverted duty structure जो हमारा है that is also important, because वहाँ पे क्या होता है, हमारा जो tax है, हमारा जो input है, that वो block होता जाता है, right? बहुत सारे cases में हमारा input block होता जाता है, and not able to get the refund from the government. So export case में that's fine is कि yes, you are payment going to make the payment with GST, without GST, and hope the point is clear one. So next is our inverted duty tax structure. Okay, because हमारा आज का topic है export and plus inverted duty tax structure. It's already 12:30. Okay, so I try to compile everything by 1 o'clock. I know हमारा time था 11 to 1, so I tried to compile everything in 2 hours plus on the basis of practical aspects.
Here is also I'll try to go it by practical way, not on a theoretical way. तो सेक्शन टू सेक्शन ठीक है, जहाँ पे नेसेसरी मैं आपको कंपाइलेशन दे रही हूँ, बट ट्राई टू बी ऑन अ प्रैक्टिकल वे. अगर आपको ये अप्लाई करना है तो आप कैसे कर सकते हो. So first of all, what inverted duty structure is? What inverted data structure is? आपको एक एग्जांपल से सारा मैं कंपाइल करती हूँ. नॉर्मली क्या है कि अगर हमारा जो इंपोर्ट हम जब हम कोई चीज मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, राइट, जो मैंने रॉ मटेरियल परचेज किया है, मैंने ऊपर उसके ऊपर टैक्स दिया है 18%, राइट. नॉर्मली ये केस हम देखने को मिलता है इन द केसेस ऑफ अ टेक्सटाइल वन, राइट, जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं. जो हमने रॉ मटेरियल परचेज किया है वो हमने परचेज किया है एट द रेट ऑफ 18%, बट जो मेरा फाइनल गुड आ रहा है, जो मेरा आउटपुट आ रहा है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ 5%, राइट. So because textile के ऊपर it's 5%. So हमारा जो output आ रहा है it's 5% or 12%, whatever the case may be, because it's on the basis of ready-made garments or non-ready-made garments. So जो balance मेरा 6% block हो रहा है tax, balance जो मेरा 6% block हो रहा है every time, and now I'm not able to utilize plus of all. अगर आप यूटिलाइज कर पा रहे हो तब आप उसका रिफंड नहीं क्लेम कर सकते. अगर आप उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो, राइट, then you will be able to claim the refund of it. So inverted duty structure में it's a clear case कि yes, you have to claim the refund, because every time you are buying the goods at the rate of 18%, and every time when you're going to manufacture it, and the final process is of 12%. So every time the process when there is a lag of 6% input. So 6% input को आपको पहले कंपाइल करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि yes, कितने टाइम ड्यूरेशन तक ये मेरा इनपुट नहीं यूज हो रहा. If you're not able to utilize the input, then you can claim the refund from the government. And obviously, you are going to claim the refund from the government, from the hands of the government. So you have to apply a formula, get the tax calculated, and file the form, and then you'll be able to get the refund from the government. And form is same only. RFT1 जो भी हमने किया है वही आपको फाइल करना है. But before going for that, there's a little bit difference in the formula as compared to the import of the goods without payment of tax. So first one is maximum refund amount, जो हमने पहले किया था, that maximum refund amount. उसमें क्या था, उसमें था total turnover related to zero rated supply of goods and services, and here is turnover of inverted rated supply of goods and services. That means वहां पे जब हम रिफंड क्लेम कर रहे थे, हम रिफंड क्लेम कर रहे थे अपने एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज और गुड्स का. यहाँ पे जब हम रिफंड क्लेम कर रहे हैं, हम रिफंड क्लेम कर रहे हैं इन्वर्टेड ड्यूटी का. तो जो टर्नओवर आएगी वो टोटल आएगी हमारी इन्वर्टेड ड्यूटी, राइट. That means on the basis of goods or services, whatever the case may be, right? Inverted duty, rated supply of goods and services into net ITC. Into net ITC मतलब total turnover के बेस पे जो हमारा eligible ITC है वो कितना है, divide by adjusted total turnover. Adjusted total turnover means वो total turnover minus जिसके ऊपर हम ऑलरेडी रिफंड क्लेम कर चुके हैं. हम नॉर्मली रिफंड क्लेम कर चुके हैं. अगर यहाँ पे हमारा एक्सपोर्ट भी चल रहा है, यहाँ पे हमारा इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर भी चल रहा है, तो नॉर्मली अगर हम रिफंड क्लेम कर चुके हैं एक्सपोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स और एक्सपोर्ट ऑन द बेसिस विद पेमेंट ऑफ टैक्स, तो उसका हमें यहाँ से टर्नओवर माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज हम डबल जो है वो रिफंड क्लेम नहीं कर सकते. बिकॉज हियर इट इज एडजस्टेड टर्नओवर, दैट मींस माइनस. सो वन इज द टैक्सेबल टैक्स पेबल ऑन सच इन्वर्टेड ड्यूटी टैक्स सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वो भी माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हम उसके भी एग्रीगेट बेस्ड टर्नओवर पे हम अपना रिफंड नहीं क्लेम कर सकते. देयर इज लिटिल बिट डिफरेंस इन द फॉर्मूला. तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ जो आपको नोट करना जरूरी है. दैट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड ऑन इनपुट्स. इनपुट टैक्स क्रेडिट नॉट अवेलेबल. ओके, इट्स नॉट अवेलेबल, इट्स अवेल्ड. ओके, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टू कि जो आपको क्रेडिट अवेलेबल था वो कितना है और जो क्रेडिट आपने अवेल किया है वो कितना है. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टू इज नेट ITC shall be input tax credit availed on inputs during the relevant period other than the tax credit availed for which refund is claimed under section 4A or 4B. Here 4 and 4B we are talking again about the export of goods with payment of tax and export of goods without payment of tax, and it will be both. That means जो net ITC है जिसके ऊपर हम ऑलरेडी रिफंड क्लेम कर चुके हैं वो हमारी अगेन इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं बनेगा. यहाँ पे एक बार रिफंड आ गया उसके ऊपर हम दोबारा रिफंड नहीं क्लेम कर सकते. और अगर हमने ये इनपुट यहाँ पे ऐड ऑन किया, दैट मींस वी आर क्लेमिंग द रिफंड अगेन फ्रॉम द गवर्नमेंट रिलेटेड टू द इनपुट ड्यूटी स्ट्रक्चर, एंड हम प्लस कर रहे हैं हमारा एक्सपोर्ट, अगेन देयर विल बी अ डिफरेंस बिटवीन द टाइम दैट यू हैव कैलकुलेटेड एंड जो डाटा गवर्नमेंट के पास आपके ऑटो पॉपुलेटेड रिटर्न्स के में अवेलेबल है जो आप प्रोवाइड करे. इफ देयर विल बी डिफरेंस बिटवीन टू, again a flow
no refund. Okay, error and no refund at all. Okay, so adjusted turnover और again one more thing, because यहाँ पे हम exclude कर रहे हैं turnovers को, right? हम यहाँ पे exclude कर रहे हैं वो turnovers को, export turnovers को जहाँ से हम already refund claim कर चुके हैं. So turnover of state excluding turnover of services, because यहाँ पे हम goods का include कर रहे हैं, हम services का नहीं tax refund ले रहे. जब services का ले रहे हैं तो goods का नहीं ले रहे. Okay, the turnover of zero rated supply of services determined in the clause and non-rated zero supply of goods. Okay, total turnover में adjusted में हम ले रहे हैं excluding the value of exempt supply other than zero rated supply. Okay, so the zero rated supply, again the thing is हमारी export services. So non zero rated जो हमारी supply थी उसको हम turnover का part मानेंगे, जो हमारी zero rated supply थी उसको हम turnover का part नहीं मान सकते. So there is a difference between two that you have to take care of it. So turnover of the supplies in respect of the which refund is claimed under section 4A 4B मैं आपको already describe कर चुकी हूँ. ना हमने exempted turnover लेनी है, ना हमने वो turnover लेनी है जिसके ऊपर हम refund claim कर चुके हैं. तो दोनों turnover इसका part नहीं बनेंगे. Hope I'm clear with the formula, because यहाँ पे बहुत सारी important चीजें हैं. So यहाँ पे I'm gonna take the example of it because it's a complicated one thing. So I've taken a very normal example, very easy example, so to make it clear of it. So practical aspects. Suppose the manufacturing process involves the use of an input A attracting 5% GST. That means जो हम raw material purchase कर रहे हैं उसके ऊपर हमें जो GST लग के आ रही है, जिसके ऊपर जो GST पे कर रहे हैं, that is 5%. Okay, so input attracting 18% of GST. इसमें मैंने एग्जाम्पल थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट कर दिया कि मेरे जो इनपुट आ रहे हैं वो 2% के बेस पे डिपेंड करते हैं, राइट? एक में मैंने क्या किया, एक में मैंने किया है कि मेरा इनपुट जो है मेरे आउटपुट के रेट से कम है. सेकेंड सिनेरियो मैंने क्या लिया है, जो मेरा इनपुट है उसका आउटपुट से रेट ज्यादा है. दैट मीन्स मेरे यहाँ पे मेरी फैक्ट्री में दो गुड्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं जिनके जीएसटी रेट अलग अलग है. वन इज 5% एंड वन इज 18%. ओके, तो जो आउटपुट अट्रैक्ट कर रहा है दैट इज 12%. आउटपुट इज सेम, राइट? तो दो इनपुट मुझे परचेज करने पड़ रहे हैं टू मैन्युफैक्चर वन थिंग जिसका आउटपुट अट्रैक्ट है 12%. तो उस यहाँ पे मुझे जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर लगेगा वो एक पे लगेगा, बिकॉज एक ही केस सिनेरियो है जो यहाँ पे उसकी कंडीशन को फुलफिल कर पा रहा है, एंड दैट इज इनपुट ए, जिसमें जो हमारे इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के हिसाब से दिस इज 7% डिफरेंस. 5% इज योर इनपुट एंड 12% इज योर आउटपुट. तो 7% का जो डिफरेंस था उसका आप क्या कर सकते हो, गेट द रिफंड. बट हाउ टू गेट द रिफंड वो मैं आपको थोड़ा सा ये एग्जाम्पल के फॉर्मूले के बेस पे एक्सप्लेन करती हूँ. दैट वैल्यू ऑफ इनपुट ए इज 500, value of input B is 2000, so value of output Y is 3000. that means उसमें जो processing fees है, जो आपकी job work expenses हैं, वो मैंने 500 इंक्लूड कर दिए हैं. तो मैंने आउटपुट की जो आपकी जो कॉस्ट लगाई है वो 3000 लगाई है. ओके, तो टोटल टर्नओवर अगेन 3000, इन्वर्टेड ड्यूटी 3000, राइट? तो यहाँ पे हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, अगेन गोइंग बैक टू द फॉर्मूला. फॉर्मूला में हमने किया था टर्नओवर ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी, राइट, of goods and services plus जो आपका बाकी का टर्नओवर है उसका आपको आईटीसी प्लस करना. ओके, हियर इट इज टर्नओवर ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी रिलेटेड ऑफ गुड्स एंड सप्लाई. तो इसमें क्या किया हमने, इन्वर्टेड ड्यूटी का कौन सा था हमारा, इन्वर्टेड ड्यूटी की हमारी वैल्यू थी 500. so it is 500 into 5% because that is the rate of your rate, and what is this 2000 into 18% जो हमारे नेक्स्ट जो इनपुट है उसकी वैल्यू थी. So 2000 into 18%, so that comes out to be 385. Next calculation is tax payable on inverted turnover. Inverted turnover हमारा कितना है 3000. उसके ऊपर हमारा टैक्स कितना बन रहा है, आउटपुट के ऊपर, राइट? आउटपुट के ऊपर हमारा टैक्स कितना बन रहा है, that is 12%. So we have calculated two values over here. So ये values अब हम फॉर्मूला में लगाएंगे because I am going to attach this is with formula only. तो फॉर्मूला में हम ये वैल्यूज लगाएंगे, दैट विल बी टर्नओवर ऑफ इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इनटू नेट आईटीसी. नेट आईटीसी हमारा कितना आया था यहाँ पे 385, बिकॉज नेट आईटीसी हमारा क्या है, जो दोनों हमें इनपुट परचेज करें हैं उसका आईटीसी. सो दैट इज 385, 500 into 5% and 2000 into 18%, दैट इज अवर नेट आईटीसी. ये हमारा आ गया 385.
So the turnover on the base, the formula on the basis of formula is turnover of inverted duty 3000, adjusted turnover 3000 into 385, that is net ITC, minus मैंने कहा था हमने क्या करना है, टैक्स पेबल जो हमारा है इन्वर्टेड ड्यूटी पे वो हमने माइनस करना है. दैट मीन्स एज कैलकुलेटेड बिफोर हमने क्या किया, हमने जो टर्नओवर थी हमारी दैट इज 3000, उसके ऊपर हमारा जो कितना टैक्स था जो हमने पे करा है दैट इज 12%, जो हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं, वो माइनस कर देंगे और बैलेंस जो हमारा आएगा दैट विल बी ऑफ रिफंड. Hope I'm clear with this because I've tried to capture the things in a very practical way. So with example, so that is very important part of it कि आपको calculate कैसे करना है. अगर यहाँ पे आप थोड़ा सा flip कर जाते हो, वहाँ पे थोड़ी mistake करते हो, that will be very difficult one because आपको inverted duty जो आपकी values होती हैं वो आपकी जो online portal है वहाँ से connect हो जाती हैं, plus आपकी जो documentation आप submit कर रहे हो to get the refund from the government is necessary. Next. Very important one, जो मैंने आपको कहा document is very necessary. Yes, documents are very necessary for inverted duty structure. It's document required for preparation and submission of the application. Right? So first again do it. जब आप गवर्नमेंट से टैक्स डिमांड कर रहे हो, जब गवर्नमेंट से रिफंड डिमांड कर रहे हो, तो गवर्नमेंट वांट्स कि आप 2A को प्रॉपर आप अपना कंप्लीट करें, 2A को आप प्रॉपर कंपाइल करें, 2A की आप प्रॉपर मैचिंग करें, देन यू कम टू द रिफंड थिंग. So first of all, the very foremost thing that they want is extracts of form of 2A from your portal. So अगर आपके वहाँ पे प्रॉपर मैचिंग हो रही है, दैट मीन्स जो आपने इनपुट क्लेम करे हैं, जो आपने 2A आपका जो ऑनलाइन शो हो रहा है, दैट इज एग्जैक्टली द इनवॉइसेस दैट यू हैव फिजिकली विद योरसेल्फ. If it's not matching, again it's gonna be a problem for you. Okay. So GST registration certificates, here they demand GST registration certificates from both the parties. And why they're demanding, we're not aware about it. Is why so? Because everything is available online. Even then they're demanding the GST registration certificate from the respective parties. Next is refund ARN receipt. Refund ARN receipt means जो हमने ये फॉर्म फाइल करा था related to the refunds, right? उसकी जो एक्नॉलेजमेंट नंबर जो आपका ARN निकलेगा, that you have attached with it, that is the refund ARN receipt. Again file 3B and 3.1, right? जो आपको GST-1 सबमिट करनी है. मंथली रजिस्टर्स ऑफ सेल एंड परचेज, दैट इज जस्ट बिकॉज कि आपको अगर मैनुअली अगर आप जाके अपना केस हैंडल करा रहे हो तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंटेशन वहाँ पे आपको उनको सबमिट करने पड़ेंगे. तो रिकंसिलिएशन ऑफ सेल एंड परचेज, अगर आप 2A कंपाइल कर रहे हो, 2B कंपाइल कर रहे हो, आप अपने 3B 3.1 फाइल कर रहे हो, आप GST-1 3B दोनों फाइल कर रहे हो, so that will be good enough for you. Plus calculation of refund totally on the basis of कि आपकी 2A में कितनी वैल्यू शो हो रही है. कैलकुलेशन में भी टोटली ऑन द बेसिस ऑफ कि आपने जो पहले रिफंड क्लेम करा है, जो आप एक्सपोर्ट का रिफंड क्लेम करा है, आप उसको डिडक्ट कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. If you're not doing it, forget about the refund. If you're doing it, so go on by way. Next is steps for claiming refund under duty structure. मैंने आपको डॉक्यूमेंटेशन बता दिए, मैंने आपको फॉर्मूलाज बता दिए हैं, मैंने आपको कैसे कैलकुलेट करना है ये बता दिया है. बट हियर द लास्ट स्टेप ओवर हियर इज steps for claiming refund under inverted duty structure. This is a very last step that you need to be compiled in the inverted duty structure. So after that, if you have any queries, I can take up the queries because it will take just 5-10 minutes and I'll take up the queries after that. So last 10 minutes I'll take up for the queries. If you have queries, then you're clear enough. If you're not, that means you are clear enough for the all the things and your provisions. So first step over here is fill and file RFT1 GST portal. Okay, जो मैंने आपको already आपको बताया है related to it, जो आपको export without payment of tax में भी आपको same form file करना था, that is this only. You have to get the form of RFT1 from here online from the refunds column and application for the refund आपको यहीं से मिल जाएगी. So this form you have to file in inverted duty structure as well. After that, ARN will be generated on the portal. जो आपको एप्लीकेशन आपकी जो फाइल EVC करने के बाद या DSC लगाने के बाद जो आपका ARN नंबर आ रहा है, जो आपकी एप्लीकेशन की रिसिप्ट आ रही है, वो यहाँ पे आपको साथ में सबमिट करनी पड़ेगी. Second one is print the application and refund application ARN generated available on the portal. Total जो application है, जो हम preview के बेस पे आते हैं, यहाँ पे आपको एक कॉलम आता है, that is on the basis of to get the preview from it. Here you will get the preview from it, right?
So when you get a preview of the form, तो आपको वो preview लेके उसको submit करना है. You'll get the printout of it. वो filed आपके यहाँ पे आ जाएगी. Like the same is the procedure like हम GST1 file करने के बाद उसको download करके उसका print ले लेते हैं. Same you have to take the printout of it. Plus you have to get the ARN receipt जो उसकी application receipt है. दोनों को आपको साथ में attach करना पड़ेगा. And next is submit the printed documents with the relevant supporting documents to the judicial authority. Relevant supporting documents जो आपको 2A आपका पास है, जो आपने रिटर्न फाइल करी हुई हैं, जो आपके ARNs आए हैं, जो आपके प्रिंटेड फॉर्म्स हैं, वो सारे जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो आपने कैलकुलेशंस करी हैं, वो सारे डॉक्यूमेंटेशन आपको इसके साथ ओरिजिनल कॉपीज में फाइल करने पड़ेंगे, राइट? ओरिजिनल कॉपीज मीन्स आपकी जो इनवॉइस की है उसके स्टैंड कॉपीज आपके साथ चल जाएंगे जो आपने ऑनलाइन फाइल करी हुई हैं. If they demand the physical things from you, then you have to file them because वो आपको submit नहीं करनी होती, वो आपको दिखानी होती है वहाँ पे. Okay? The tax official will process the refund and once the application is processed, the refund will be dispersed manually. Okay? So inverted duty structure में यहाँ पे आपको refund once तो मिल जाता है. If there is any flaw, so you have to get the correct the flaw after consulting the officer, noble officer. वहाँ पे आपको consult करना पड़ेगा officer को. अगर नहीं कर पा रहे हो तो again I linger on with it, but yes I should be able to get the condition terms and compliance fulfilled तो आप आराम से उसका refund claim कर सकते हो. If you have any queries, you can take up the queries right now. If you don't have the queries, and you can reach out to me later on as well. I have given my mobile number, I have given my email ID over here, and if you want to connect with it, so definitely you can, because I'll open for it the queries. Okay, you have any queries, आपने openly I can take it. अगर अभी नहीं आप future में कोई अपनी queries देना चाहते हो related to the refunds, related to any topic related to the GST, because mostly I am working in GST plus appeals and taxation. तो अगर आपकी queries हैं, I take up the queries in that. So thank you so much. If you have any queries, I'm waiting for it. Any query from the member? Please आप ले लें अपनी query, मैम available हैं अभी. Okay. नॉर्मली यहाँ पे जो आपके एक्सपोर्ट की जो 2-3 क्वेरीज थी वो तो मैंने साथ साथ में टेकअप कर ली है. सो आफ्टर दैट आपकी जो क्वेरीज हैं दैट इज आई थिंक और इट्स क्लियर इनफ. तो कोई बाद में क्वेरी होती है आई डेफिनेटली गेट कनेक्टेड विद यू. हाँ मैम, आपका ईमेल आईडी भी मोबाइल नंबर भी है मेंबर्स के पास, तो कोई इशू नहीं होगा. तो दोनों चीजें शो कर दी हैं. तो बेसिकली दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर एज वेल. इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन ड्रॉप टू व्हाट्सएप, so I'll reply to the same. अगर आप if is any kind of urgency, so definitely you can call me up for that. हाँ जी, हाँ जी. Okay, over to Pankaj. Thank you, Preeti ji, and really it was a wonderful seminar, and hope members liked it, and definitely we got enlightened with your knowledge. And each and every member would be having your email, so anybody who is facing any kind of issues on daily basis, then he or she can reach out to you. And really thankful for attending the seminar on short notice, and really thankful for this wonderful deliberation. So paying First vote of all, of thank thanks you for attending the seminar on Sunday. Right. So some every day is Sunday, like because most of the members are operating from home. Somehow every day is a Sunday as of now, and soon this will end. Soon this will end. Soon, hopefully, we'll come back to our routine schedule, right? Yeah. Thank you, Himanshu. ठीक है. Thank you so much. Thank you all Thank the you, members who have come. Thank you so Thank you, much. ma'am. Namaskar, ma'am. Thank you. So thank you so much for inviting me, and it's pleasure to be here. Hopefully कि मैं अपनी queries जो हैं या section को मैं justify कर पाऊँ.